Okay, so I welcome all those students who have joined CFA level 1 classes from today. And there are many who have already joined for whom this is a new topic. Okay, equity. I'll just invest around 5-7 minutes into general discussion. And towards the end, those who have joined new, if you have further doubts, you can stay behind, we can discuss. CFA program में there are two distinct types of people who join. At the extremes बात कर रहा हूँ. On one extreme are class 12 passed out students. At the other extreme are working people who are full-time working and who cannot attend live or even face-to-face class. The problem with class 12 passed out students is that they need a disciplining mechanism. दैट काश ऐसा होता कि एक पीरियड के बाद नेक्स्ट पीरियड के बाद नेक्स्ट पीरियड, ठीक है. तो इन दैट केस अपने आप ही द स्टफ वुड हैपन एंड एग्जामिनेशन विल कम, वी विल क्लियर. बट इट डजंट हैपन दैट वे बिकॉज माई नेचर इज सच दैट आई एम नॉट टू मच इनटू डिसिप्लिनिंग कि मैं तुम्हारा चेक करूँगा तुम क्या किए. आई विल कॉल योर पेरेंट्स इफ़ यू आर नॉट अटेंटिव और यू हैव नॉट टेकन द मॉक टेस्ट. वो सब मेरे से होता नहीं. इट इज़ नॉट इन माई पर्सनैलिटी. ऑन द अदर एक्सट्रीम, दो स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग एंड हु आर डूइंग द कोर्स, दे ऑलवेज फील दैट काश अपने पास टाइम होता और बाकी लोग के जैसे दिन में ही पढ़ पाते, लाइव क्लास कर पाते, फेस टू फेस कर पाते. बट दे आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ द प्री रिकॉर्डेड सेशंस एट देयर ओन स्पीड, एट देयर ओन फ्लेक्सिबिलिटी. 1.25, 1.5 हाफ क्लास देखे, उसके बाद मन नहीं कर रहा है, बाद में देखेंगे. इस पूरे में एट SSCI मेरी क्लासेस में एनीबडी हु स्टेज ऑन ट्रैक, डज द क्लासेस, लास्ट तक रहता है, वो कभी भी फेलियर नहीं एक्सपीरियंस कर सकता है. CFA इज़ अ प्रोग्राम वे यू आर नॉट सपोज टू फेल. यू कैन नॉट फेल बिकॉज इट इज़ डिज़ाइंड सो नाइसली. Of course, in class, our objective is not only the examination, our objective is real life, and that got to be an objective. So because of which मेरे को ज़्यादा time लग जाता है, I become extra aggressive in communicating the stuff which will be useful in life. But otherwise, from an exam point of view, there is nothing, or I should not say nothing, but there is 90% or 80% stuff in the CFA curriculum which nobody can say later on, it was so difficult. कोई नहीं बोल पाएगा. When you will finish the curriculum and speak about कि सर कौन सा portion tough था, I think you will not be able to say. Maybe 10%. Otherwise 90% stuff was simple, easy. Yes, it was real life related. It is very vast and you keep on forgetting. So the advice, request and order to you is that if anybody has inhibitions, यार हो तो जाएगा ना, इतना investment of time और पैसा हो रहा है, तो बिलीव मी 100% हो जाएगा इफ़ यू जस्ट कीप ऑन ट्रैक. दिस इज़ नॉट लाइक द CA प्रोग्राम, ठीक है. दिस इज़ द CFA प्रोग्राम. पास होना एकदम 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 पॉसिबल है. हाउएवर आई थिंक इफ़ यू इमेजिन योर लाइफ से 3 years, 4 years, 5 years, 7 years डाउन द रोड, एंड उस समय तक एवरी ईयर पर एनम अराउंड 5% इन्फ्लेशन तो हुआ ही होगा, ठीक है. अपने 7 साल बाद का बात करते हैं तो 5% इन्फ्लेशन पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट छोड़ भी दें तो 35%, 40% इन्फ्लेशन हो गया, चीज़ों का दाम 40% बढ़ गया. आज के दिन देर इज़ अ सर्टन लाइफ स्टाइल दैट यू वॉन्ट, यू रिक्वायर. इट्स नॉट अ नेसेसिटी, इट इज़ समथिंग दैट यू एस्पायर फॉर. एंड प्लस देर इज़ नो लिमिट टू what you want to prove to the world about your capability, about your ambitions, about the fact that people should acknowledge you. If those are stuff which are there in your mind, and they should be, but it is very odd of anybody not having those aspirations, in that case merely passing the CFA program is not enough. Okay, Rahul Agarwal CFA, that letter is not going to cause a substantial change in your life, because बहुत सारे लोग CFA करने वाले हैं. There will be a host of people. उनमें से जो लोग अच्छे से करेंगे, जो लोग डीपली करेंगे, प्रैक्टिकली समझ के करेंगे, दे विल बी डिस्टिंग्विशर्स. आज का जो टॉपिक है इक्विटी, उस इक्विटी से रिलेटेड देर इज़ अ वेरी कॉमनली यूज्ड कोर्स
which has been misused and abused, which is called financial modeling. Financial modeling, नाम शायद सुना होगा. It is your ability to create a financial model for the purpose of valuing a stock, for the purpose of mergers and acquisition, okay, for the purpose of various, you create a financial model. Financial model unfortunately has become an Excel exercise. ये किसी को एक्सेल बहुत फास्ट आता है, सारे के सारे शॉर्टकट्स आते हैं, डेकोरेट करना आता है, क्या सुंदर प्रेजेंटेशन दे देगा, ठीक है. तो एंड दैट पर्सन में फील दैट ही इज टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जबकि दैट इज गोइंग टू बी इन फ्यूचर ABCD. इट्स लाइक यू नो रीडिंग एंड राइटिंग, दैट इज लाइक यू नो एक्सेल. इट हैज़ नो मीनिंग ओवर एंड अबव दैट. तो इवन तो जानना चाहिए एक्सेल, बट बता दूं कि अगर कोई बंदा है जिसको एक्सेल से नफरत है, आता है पर करने का मन नहीं करता है, बट इज़ वेरी वेरी अट्यून टुवर्ड्स बिजनेसेस, वो धंधे को समझता है, बिजनेस पे दिमाग लगाता है, ही कैन सी दैट क्या होने से बिजनेस में वैल्यू क्रिएट होगा, ही अप्लाइज हिज ब्रेन दैट वे, वो पर्सन मोर डिमांडेड होगा फ्यूचर में. इफ़ वी आर थिंकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लिस्निंग अबाउट AI, ML, बिग डेटा, these are not just words that are coming and going by, and the problem is that there's so much of it is happening. 199 का कोर्स, 99 का कोर्स, 499 का कोर्स everywhere, that it is becoming commoditized. But if you ask me कि सर क्या AI के आने से रिसर्च एनालिस्ट लोग का बहुत सारे का जॉब जाने वाला है, द आंसर इज येस. अकाउंटेंट्स का तो सबसे पहले जाएगा, उनका तो बात ही क्या करें. एनालिस्ट लोग में से भी जाएगा. कौन से एनालिस्ट का? वही जो एक्सेल निंजा बन रखे हैं, जिनको एक्सेल जोर से आता है, who know Excel wonderfully, okay, who are champion in Excel, but when you ask them about the substance, क्या चीज़ का बात कर रहे हैं, it is garbage in garbage out. डेकोरेटेड मॉडल होगा जो लिंक्डइन में शेयर हो जाएगा, ठीक है, एंड एवरीबॉडी विल से वाह वाह व्हाट अ ग्रेट मॉडल. जैसे किताब का कवर देख के अपने बोलते हैं ना, क्या बुक है यार, कितना मोटा है, देख, यू हैव नॉट रेड इट इनसाइड. तो इफ़ यू चेक इट आउट, यू विल फाइंड दैट उसमें जो सेल्स का प्रोजेक्शंस है पूरा का पूरा बेकार है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का प्रोजेक्शंस बेकार है, कंपनी का सारा प्रोजेक्शंस उसमें बुलशिट है. एंड जस्ट बिकॉज इट्स डेकोरेटेड वेल एंड वन इज मैनी पीपल आर सेइंग वाओ वाओ, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. सो बिकॉज ऑफ विच join the program not with an intent to just clear the program, which is very very easy, I'm telling you. The intent is to really dig inside it कि यार इसको अच्छे से करते हैं, बढ़िया से करते हैं. और क्या अच्छे से करने में मज़ा आएगा, अच्छे से करने में ही मज़ा आएगा. इनफैक्ट इफ़ यू टॉक अबाउट द मज़ा वाला पार्ट, अच्छे से करने में ही मज़ा आएगा, बिकॉज देन कुछ और ही चीज़ चालू हो जाएगा. बुरे से करने से, एग्जाम के लिए करने से कहीं ना कहीं बीच में मोनोटोनिटी विल क्रीप अप. यू विल फील दैट यार मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसे सोचे थे ना ये होने वाला है वो होने वाला है, ठीक है. तो आई थिंक दैट मज़ा इन द प्रोग्राम इज़ गोइंग टू कम एज अ रिजल्ट ऑफ योर रिसर्चिंग एंड रिसर्चिंग. इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि अपने इक्विटी से स्टार्ट कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू रियली डिग इन साइड इट, ऑफकोर्स विद इन द टाइम कंस्ट्रेंट ऑफ द करिकुलम, ठीक है, बट यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. आई कीप ऑन शेयरिंग दैट आप ये भी कर सकते हैं अपने लेवल पे, ये भी कर सकते हैं, बिकॉज हर चीज़ मैं आपके लिए यहाँ नहीं कर पाऊँगा, ऑल द प्रैक्टिकल डिस्कशंस, बट आई गिव यू अ लॉट ऑफ हिंट्स अबाउट व्हाट यू कैन डू. ठीक है, सबके पास कैलकुलेटर, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट BA2+ कैलकुलेटर जनरली होना चाहिए. अगर बीच में ऑर्डर किया हुआ है या ऑर्डर करेंगे तो कम से कम उसका जो ऐप वर्जन होता है ना, जो फ़ोन पे डाउनलोड होता है, उससे काम चलाना चाहिए. बिकॉज वी विल बी डूइंग कैलकुलेशंस एंड कैलकुलेशंस के बिना द रिदम वोंट कम इन द क्लास. ठीक है सर, सिलेबस क्या है, सिलेबस कैसे कैसे कंप्लीट होगा, ठीक है, पहले क्या करें बाद में क्या करें, दीज आर यूजुअल क्वेश्चंस. ये मैंने ओरिएंटेशन क्लास पे करवाया था, ऑन बोर्डिंग सेशन और ओरिएंटेशन सेशन विच इज़ देयर ऑन यूट्यूब. जिनका भी आज फर्स्ट क्लास है, रिक्वेस्ट यू ऑल कि वो ओरिएंटेशन या ऑन बोर्डिंग सेशन ज़रूर सुन लेना, उससे आपको सिलेबस पता चल गया और बाकी चीज़ें पता चल गई. और आज क्लास के एंड में मैं एक बार बता दूंगा कि इसके बाद आप लोगों को कैसे कैसे मूव करना है, स्पेशली दोज हु हैव जॉइंड टुडे. ठीक है, तो दिस इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ एवरीबडी, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल हु आर अपीयरिंग इन रीसेंट टर्म्स एंड वो लोग भी ये चैप्टर करना चाहते हैं. तो आई डोंट वांट टू कीप ऑन स्पीकिंग अबाउट जस्ट जनरल स्टफ. ठीक है ना, ओके. सो वी नाउ स्टार्ट इक्विटी. CFA लेवल 1 में देर आर 10 टॉपिक्स, इक्विटी इज़ वन टॉपिक. If you invest in equity, you invest in bond. अपने आप जब लिखाना होगा मैं लिखा दूंगा, बीच में you listen and you reply if I ask you something.
ठीक है, लिखने का चीज़ मैं बता दूंगा. If you invest in equity, imagine that you have a 500 crore का corpus. 500 crore is by the way very small amount corpus, and you invest 60% in equity. यानी 300 करोड़ आपने शेयर मार्केट में लगाया. You invest 120 crore in bonds, government securities, corporate bonds, and you invest 80 crores into alternate investments. Alternate investments मतलब cryptocurrency, commodities, including gold, private equity, private debt, and so on. Generally, it is believed that equity is a powerhouse in the long run. यानी इक्विटी जो आपको रिटर्न दे सकता है वो अनपैरेलल्ड है, phenomenal return in the long term. Of course, it comes at high risk, because when you invest in the equity shares of a company, is the company legally bound to pay you anything? The answer is actually no. आप बिजनेस ही तो कर रहे हो, केवल आप उसको नहीं चला रहे हो. Okay, the management is running it, but company is not liable to pay you dividend. You have some voting rights and all in the company, that's fine. Jabki if you give a loan to the company, you know that the company has to pay you interest. It has to refund the money back, otherwise you can make it bankrupt. तो इक्विटी में ओनर बन रहे हैं बिजनेस का, और ओनर बन रहे हैं तो इस पर स्कोप बहुत ज़्यादा है. स्कोप कितना ज़्यादा है इसका कोई लिमिट नहीं है. एंड व्हेन वी लिसन टू द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, बिलीव मी, लोग उसका महत्व समझते नहीं है. बिकॉज अगर आपका पैसा, इफ़ योर मनी, एंड इट नीड्स टू बी सेड, इफ़ योर मनी इज गेटिंग डबल्ड every, or I should say that way, there's a rule of 72. Rule of 72 is 72 divided by interest rate. It gives us the doubling period. तो अगर कोई 12% per annum कमा रहा है ना, 12% per annum, तो his money is getting doubled in how many years? 6 years पैसा डबल हो रहा है. अगर कोई 24% per annum कमा रहा है तो पैसा डबल हो रहा है कितने years में? 3. If somebody is earning around 48% per annum, money is getting doubled in what? 1.5. इन तीनों में डिफरेंस बता दे. इन तीनों में डिफरेंस जो आपको फील नहीं हुआ ये सुन के. इन केस यू इन्वेस्ट फॉर 30 years, 30 साल अगर आपने इन्वेस्ट किया तो और 6-6 साल में पैसा डबल हो रहा था, तो पैसा 5 बार डबल होगा. कितने बार? 5 बार. तो 2 power 5 is what? 32. If you invest 1 crore, it will become 32 crore after 30 years. बट अगर पैसा 3 साल में डबल हो रहा था, 30/3 is 10 टाइम्स डबल होगा. एंड 2 power 10 is not 64. 2 power 10 is 1024. वो 32 था, ये 1024 करोड़. 1 करोड़ बिकमिंग 1024 करोड़. अगर 1.5 साल में पैसा डबल हो रहा था, 30/1.5 is what? 20. 2 power 20 God knows is I think 1,50,000. If you check 2 power 20 कैलसी में हटेगा नहीं. 1,50,000. यानी 1 करोड़ बिकम्स 1,50,000 करोड़. रुपया का बात हो रहा है. इफ समबडी इज नॉट फाइंडिंग इंटरेस्ट इन रुपया का बात, यू आर एट द रॉन्ग प्लेस. वी आर हियर ओनली फॉर मनी. ओके, इट इज अज्यूम्ड दैट यस, मनी मे नॉट बी द पुनेशा फॉर ऑल रेमेडीज, बट इट इज एसेंशियल. वी वांट टू मेक इट ग्रेट, एंड द वे टू मेक इट ग्रेट इज टू रियली किल द इक्विटी मार्केट्स. इक्विटी मार्केट्स को जो चैंपियन हो गया वो पैसा छाप सकता है. People at the age of 30, 32 are becoming fund managers. They are managing corpus of more than 10,000, 15,000 crores to begin with. Such a great life they have in front of them, I cannot explain. Okay, you have these 10 years. If you can really understand equity and like equity and enjoy equity, in that case हो गया. Okay, CFA program से मतलब ही नहीं है. तो ये इक्विटी अपने स्टार्ट करने वाले, इट्स अ पावर हाउस ऑफ वेल्थ क्रिएशन. जिसने भी लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट में पैसा लगाया है 30, 40, 50 साल, म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाया है, डायरेक्ट लगाया है, डजेंट मैटर, अगर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में लगाया है, द पर्सन हैज़ बीन एबल टू जनरेट सॉलिड वेल्थ. एंड दिस इज नाउ अंडरस्टूड बाय एवरी फैमिली, इवन द मोस्ट कंजर्वेटिव फैमिलीज, इवन द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का फैमिली, एंड दे टू हैव अ SIP एंड दे इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स विच आर इक्विटी ओरिएंटेड. दैट वाज नॉट द स्टेट ऑफ अफेयर्स 20 years ago. ओके, जहाँ पे बोला जाता था बच्चे से कसम खाया, बता तुम शेयर मार्केट में कभी नहीं जाएगा ना, पहले ये बता, तब तुमको कॉमर्स करने देंगे. अंडरस्टूड. एंड nowadays तो वी सर्च फॉर perhaps a bride for a daughter who is into the share market.
in a very disciplined manner. Anyways, now let me start with one such stories in order to come to the track. Let's talk about popular companies से स्टारबक्स का अपने बात कर रहे हैं बिकॉज इट्स वेरी इजीली रिलेटेबल. आप स्टारबक्स का एनालिसिस कर रहे हो. देयर इज अ क्लाइंट ऑफ योर्स who wants to take a 10% stake in Starbucks. 10% stake is very big. 10% stake Starbucks पे लेना है. Starbucks को फंडिंग का रिक्वायरमेंट है. आपको वैल्यूएशन करना है Starbucks का एंड यू हैव टू एडवाइज द क्लाइंट शुड वी गो फॉर इट और नॉट. ठीक है. तो इक्विटी का मतलब हो गया अपने डिस्कस कर रहे हैं कि किसा क्या एक पर्टिकुलर कंपनी में पोजीशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. उसके लिए यू हैव टू फोरकास्ट द कैश फ्लोज दैट स्टारबक्स इज गोइंग टू थ्रो. स्टारबक्स क्या कैश फ्लो जनरेट करने वाला है शेयर होल्डर्स के लिए. एक बार फॉर द पर्पस ऑफ जनरल कम्युनिकेशन लेट अस कॉल इट नेट इनकम और पैट. नेट इनकम और पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऑल्दो दैट इज नॉट अ कैश फ्लो मेजर, बट एक बार फॉर द सेक ऑफ इट, ओके, पैट. तो अपने पैट का बात करें, पैट से रिलेटेड होता है सी फैट, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. पैट के बदले कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, बट लेट्स स्टे इनटू पैट. तो पैट और नेट इनकम इज कॉल्ड द बॉटम लाइन इन अ बिजनेस. द बॉटम लाइन बिकॉज पीएल अकाउंट में सबसे लास्ट में पैट आता है. इफ यू प्रिपेयर अ पीएल अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, सबसे लास्ट में क्या आएगा? पैट. और सबसे शुरू में क्या आएगा? रेवेन्यू. क्या आएगा? रेवेन्यू. रेवेन्यू इज कॉल्ड द टॉप लाइन. रेवेन्यू इज कॉल्ड द टॉप लाइन एंड पैट इज कॉल्ड द बॉटम लाइन. वी एज CFA prospective charter holders are never going to prepare a PL account in our life because that is a job of an accountant. We don't want to be accountant. ठीक है. तो अपने को उसका अकाउंट्स बनाया हुआ जरूर देखना है टू अंडरस्टैंड द ड्राइवर्स, बट वी डोंट हैव टू प्रिपेयर द PL अकाउंट. ठीक है. वी हैव टू एनालाइज द PL अकाउंट. तो रेवेन्यू टॉप लाइन का बात कर रहा हूँ स्टारबक्स का. सुनना प्लीज. स्टारबक्स ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा क्या बेचता है? कॉफ़ी. ग्लोबल कॉफ़ी मार्केट यानी ऑल द पीपल हु आर सेलिंग कॉफ़ी ग्लोबली मे बी अराउंड, मन से बोल रहा हूँ, $500 बिलियन, बिकॉज मैं भी रुकूंगा नहीं. ठीक है ना, मैं रिसर्च करके आया हूँ. दिस इज योर फिल इन द ब्लैंक्स कि ग्लोबल कॉफ़ी मार्केट का साइज क्या है. दैट कुड इजिली बी रिसर्च्ड बाय यू ऑन परप्लेक्सिटी और GPT और गूगल और व्हाटएवर. सपोज एक बार $500 बिलियन फॉर द पर्पस ऑफ द फ्लो बोल रहा हूँ. $500 बिलियन डॉलर्स बोला मैंने. $500 बिलियन ग्लोबल कॉफ़ी मार्केट है. मैं अज्यूम कर रहा हूँ, यू कांट कंप्लेन लेटर ऑन सा आपने गलत बोला था, मैं मन से बोल रहा हूँ. स्टारबक्स हैज अ मार्केट शेयर ऑफ से 30%. ऑल्दो 30 से कम ही होगा बिकॉज US में 30% होगा, बाकी जगह पाकिस्तान में कहाँ से 30% होगा. ठीक है. सो इन दैट केस मान लेते एक बार 30%, तो $150 बिलियन स्टारबक्स का सेल्स आ गया. तो एक तरह से सेल्स का फॉर्मूला नहीं, बट फिर भी फॉर्मूला बोले तो सेल्स का फॉर्मूला बिकम्स A into B. बिकम्स व्हाट? A into B. A is the market size or total addressable market. People call it TAM. There are other versions of it. Okay, TAM or market size total. And दूसरा हो गया market share. तो revenue of a company is equal to market size into market share. Is it fine? ये कोई फॉर्मूला नहीं है. टोटल मार्केट साइज कितना, आपका मार्केट शेयर कितना, यू मल्टीप्लाई द सेम, यू विल गेट द रेवेन्यू. तो इफ आई एम एनालाइजिंग स्टारबक्स, तो आई वुड लाइक टू सी दिस. मेरा स्टाफ वेट कर रहा है कि कब मैं बोर्ड यूज़ करूँगा वो उठ के जाए. ठीक है. तो दिस इज द मार्केट साइज एंड दिस इज द मार्केट शेयर. अब तो वहाँ से मैनेज कर लेना. Market size and market share. Ceteris paribus, ignoring other factors, we would like to invest in Starbucks if we believe that this is going to become this and this is going to become this, isn't it? इधर से इधर जाए तो बहुत ही अच्छा चीज़ है कि मार्केट साइज भी सब बढ़ने वाला है और मार्केट शेयर भी बढ़ने वाला है.
करेक्ट है? तो इस केस में स्टारबक्स का रेवेन्यू विल बी बूस्टेड अप। इफ यू आर, फॉर दोज ऑफ यू हु आर क्वाइट न्यूमेरिकल पीपल, न्यूमेरिकल नंबर क्रंचिंग वाले लोग हैं, तो 1 मिनट रुक के जवाब देना, तुरंत जवाब मत देना, बिकॉज तुरंत जवाब रॉन्ग देने वाले हो। If according to my forecast the global coffee market is going to grow at 10% and the market share of Starbucks is going to grow at 20%, in that case Starbucks का sales is going to grow at what percent? I said 1 minute रुक के जवाब देना। If global coffee market is going to grow at 10% and Starbucks का market share is going to grow at 20%, in that case Starbucks का revenue is going to grow at what percent? Now those who want they can reply. नहीं, शेयर क्या था वो तो मैंने बोला ही नहीं स्टारबक्स का, वो भूल जाओ। अभी केवल बात हो रहा है स्टारबक्स का क्या शेयर है उसको भूल जाओ, सीधा फिगर्स है कि स्टारबक्स का एक सर्टेन रेवेन्यू इस साल रिपोर्ट हुआ है, ठीक है, तो उसका रिपोर्ट हुआ है रेवेन्यू। अब मैं बोल रहा हूँ स्टारबक्स जिस मार्केट में, कॉफ़ी मार्केट, दैट्स गोइंग टू ग्रो बाय 10% ओवरऑल द सर्कल, एंड योर क्या बोलते हैं, द मार्केट शेयर ऑफ स्टारबक्स इज गोइंग टू ग्रो बाय 20%। इन दैट केस स्टारबक्स का सेल्स इज गोइंग टू ग्रो बाय हाउ मच परसेंट? पहला जवाब होना चाहिए था 30, 10 और 20 मिला के कितना 30, but ultimately it was a multiplicative model. Revenue was equal to what? A into B, not A plus B. So A went up by 10%, B went up by 20%, and therefore if you apply your brains it will be 10 plus 20 plus 20% of 10, 10 plus 20 plus 20% of 10, 2% एक्स्ट्रा होगा ना क्रॉस प्रोडक्ट, 32% से बढ़ेगा कितना? 32% से। इन केस आई वॉज नॉट कम्युनिकेटिव, लेट मी एक्सप्लेन, मे बी हो सकता है मेरा लेस कम्युनिकेटिव था। मैंने ये बोला था ये $500 बिलियन है, इफ़ यू रिमेंबर। मैंने ये बोला था ये $150 बिलियन है बिकॉज 20% है मार्केट शेयर, करेक्ट है, 20% मार्केट शेयर है, ये मैंने शुरू में बोला था। देन आई सेड दैट दिस इज गोइंग टू ग्रो बाय 10% तो बिकम 550 बिलियन, दैट्स फाइन आई थिंक एवरीबडी के साथ 550 बिलियन। And then I said the market share is going to grow by 20%. तो जाहिर है I meant 20% of 20. 20% of 20 which is what? 2. यानी कितना हो जाएगा? 22%. 22% हो जाएगा ये। एक मिनट, या फिर मैं बिकॉज 2020 में कंफ्यूजन हो गया। हाँ 32 के जगह पे क्या होना चाहिए? कौन सा 32 बोला आपने? और जो मैं 32 बोल रहा था वो नहीं, वो तो ऐसे बोल रहा था। आई सेड रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्केट साइज इनटू मार्केट शेयर। फिर ये वाला पार्ट को अपने 1.1 टाइम्स कर दिए और ये वाले पार्ट को 1.2 टाइम्स कर दिए। सोचो ना, दोनों 1 और 1 था, तो इन दैट केस 1.1 into 1.2 is equal to what? 1.32. 1.1 into 1.2 is what? 1.32, which goes to show that this has gone up by what? 32%. This has gone up by 32%. तो in that case amount wise बात करें तो ये वाला 20% into 1.2 is what? 24%. 20% into 1.2 is 24%. This is fine. तो 24% of 550 क्या होगा? 24% of 550 हेल्प प्लीज। 24% of 550 132, बैच हो गया ना, $132 बिलियन। तो आपको अमाउंट से कंफर्टेबल होगा, जिसको डिस्कम्फर्ट हुआ है सर 500 बिलियन वॉज द टोटल ग्लोबल कॉफी मार्केट, यू सेड दैट इट विल ग्रो बाय 10%, 550 बिलियन, इस पर कोई डाउट नहीं है आप लोग को। सर मार्केट शेयर वॉज 20%, यू सेड दैट मार्केट शेयर विल राइज बाय 20%, तो 20 का 20% इज 4, तो 4% बढ़ेगा, मैंने क्या हो जाएगा? 24% हो जाएगा मार्केट शेयर। तो अब 24% 550 बिलियन का $132 बिलियन, तो इसका मतलब $32 बिलियन जो है वो स्टारबक्स का सेल्स बढ़ने वाला है, ठीक है। तो $32 बिलियन स्टारबक्स का सेल्स बढ़ने वाला है। इनफैक्ट जानते हो, अपने सिलेबस में नहीं है बट जनरली
हो सकता है किसी किसी ने कहीं सुना होगा, एक BCG कंपनी है ना, कंसल्टेंसी कंपनी, BCG, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप। बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप का एक मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स, एंड दैट इज इवन एप्लीकेबल टू यू इन रियल लाइफ। वो मैट्रिक्स ये बोलता है ना कि कौन से बिजनेस में जाना चाहिए, कौन से बिजनेस में जाना चाहिए, कौन से धंधे में इन्वेस्ट करना चाहिए। दैट्स अ फंक्शन ऑफ टू थिंग्स। उसका जो टोटल मार्केट है, टैम, वो उसका ग्रोथ हाई है या लो है, ग्रोथ ऑफ टैम। दूसरा, जो आपका उसमें मार्केट शेयर है, आपका उस पर जो मार्केट शेयर है वो हाई है या लो है। टैम इज हाई और लो, ग्रोथ रेट ऑफ टैम, सॉरी, ग्रोथ रेट, एंड मार्केट शेयर इज हाई और लो। अगर आपका दोनों ही चीज हाई है, विच मीन्स मार्केट साइज बहुत हाई है और एट द सेम टाइम आपका मार्केट शेयर भी बहुत हाई है, तो इन दैट केस यू विल ग्रो एज पर द इंडस्ट्री, ग्रो एज पर द इंडस्ट्री। मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर स्टारबक्स 40% ऑक्यूपाई कर लिया कॉफ़ी मार्केट का, 40%, तो 40 के बजाय 50, 60, 70 थोड़ी हो जाएगा। ये थोड़ी है कि लोग सारा कॉफ़ी स्टारबक्स से ही लेंगे, इम्पॉसिबल है, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। 40 इज मोनोपोलाइजिंग ओनली, मोर और लेस। तो यू नो द मार्केट शेयर विल नॉट ग्रो, बट द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग। पीपल टी, खासकर इंडिया में, ओके, द जेनजी, वो स्टॉप करके कहाँ जा रहे हैं, कॉफ़ी। तो अकॉर्डिंगली इंडियन टाइप कंट्री में देखें तो अपने को लगता है ग्रोथ रेट बहुत हाई होने वाला है कॉफ़ी का, ऑन द होल, ठीक है ना। सो ये है, इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टार्स। ये वाला प्रोडक्ट को बोलते हैं स्टार्स। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें ग्रोथ रेट बहुत हाई है, सर्कल इज राइजिंग, बट द मार्केट शेयर कैन नॉट गो अप बिकॉज इट्स ऑलरेडी वेरी हाई। ऑन दी अदर हैंड, ये वाला जो है ना, ये वाला, दिस इज कॉल्ड डॉग्स। एक ऐसा इंडस्ट्री जो ग्रो कर रहा है बहुत ही स्लो रेट से और जिसमें आपका मार्केट शेयर भी डूबा हुआ है। इसका मतलब उस पर कुछ नहीं हो सकता, आपको उससे निकल जाना चाहिए। यू शुड एग्जिट, इट्स डॉग्स, शन इट ऑफ, सेल इट ऑफ एंड एग्जिट। और ये वाला जो है जहाँ पे मार्केट शेयर इज हाई एंड अपना, सॉरी, ग्रोथ रेट ऑफ द इंडस्ट्री इज हाई एंड अपना मार्केट शेयर इज लो। इंडस्ट्री जोर से ग्रो कर रहा है और अपना मार्केट शेयर भी लो है, 5%, 2% है। क्या स्कोप है, जस्ट थिंक। इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस, ठीक है, सर्कल, एंड योर शेयर इज लो। सो इफ यू इंक्रीज योर शेयर यू विल ग्रो, इवन इफ यू मेंटेन योर शेयर यू विल ग्रो। दैट्स कॉल्ड क्वेश्चन मार्क। क्या आप ये कर पाओगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और ये वाले को बोलते हैं कैश काउ। कैश काउ बिकॉज इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रहा है, सैचुरेटेड इंडस्ट्री है, बट यू हैव अ बिग मार्केट शेयर, सो यू आर जनरेटिंग कैश आउट ऑफ इट, प्लीज पुट इट इन अदर बिजनेसेस। तो बोला जाता है कैश काउ से कैश लो, डॉग्स को बेचो, उससे कैश आया, और उस पैसे को लगाओ क्वेश्चन मार्क में और स्टार्स में। ओके, दैट इज ऑब्वियसली सिलेबस में नहीं है तो मैं थोड़ा फास्ट बोला, BCG प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स। ओके, तो ये ऐसे बोला जाता है। तो वैसे ही मैं यहाँ पे बता रहा था कि रेवेन्यू एनालिसिस किसी कंपनी का इस तरह से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज SSCI में मेरी जो कंपनी है दैट इज ऑब्वियसली लिस्टेड और अनलिस्टेड। अनलिस्टेड, सपोज समवेयर I decide to majorly expand, and I think that लोगों का कल्ट है, we should have a multi faculty system। हर बड़े सिटी में we open centers, Bangalore, Mumbai and all that, जहाँ पे multiple faculties पढ़ाएंगे, and I will be going over there। हम लोग खुद का centers खोलेंगे, तो because of which I will require a lot of funds। तो मैंने एस्टिमेट किया मेरे को फंडिंग चाहिए, इसलिए मैं अप्रोच किया एक प्राइवेट इक्विटी फंड को। आई अप्रोच अ प्राइवेट इक्विटी फंड, PE फंड। तो PE फंड जो है मेरे यहाँ पे 20, 30, 40% स्टेक लेगा, फंडिंग प्रोवाइड करेगा। नाउ PE फंड विल सी दैट ये पढ़ाते क्या है। ओके, ये CFA पढ़ा रहे हैं, CA पढ़ा रहे हैं, FRM पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का कोर्सेज पढ़ा रहे हैं। ये जो कोर्सेज है इनका सर्कल टैम क्या है और किस रेट से बढ़ने वाला है और इनका मार्केट शेयर क्या है। इट विल डेफिनेटली सी दैट अगर CFA का प्रॉस्पेक्ट्स ब्राइट नहीं है तो इन दैट केस half the battle is gone over there, valuation is gone. So any industry you look at the total TAM, the growth rate according to you, the perception and the market share of that company. Is it going to grow? Is Starbucks actually producing that differential quality which it promised to? A differential quality मैं taste wise नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ Starbucks if you know of, और आज के दिन भी कैलकाटा में कितने सारे लोग हैं जिनका सपोज
एसेट बैकिंग अच्छा नहीं है, घर अच्छा नहीं है रहने का. ओके, दे आर लिविंग in a place which is not that, like environment is not friendly enough to work, but at the same time वो लोग ठीक ठाक अर्न कर रहे हैं, liquidity is good, you understood. एक होता है एसेट बैकिंग, होता है लिक्विडिटी. तो वो लोग 4-4 घंटा 6-6 घंटा स्टारबक्स पे जाके बैठते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग देयर वर्क, बिकॉज इट प्रोवाइड्स एन एम्बियंस. So that is where Starbucks started, na? कि we are providing you an ambience, a luxury environment for the purpose of operating. But all that crashed down, especially after COVID, because COVID के बाद जो घर पे आदत हो गया, ठीक है. फॉर दैट मैटर इवन जेप्टो जो है ना, जेप्टो वो कॉफ़ी स्टार्ट किया था होम डिलीवरी, ऑल्दो वो प्रोजेक्ट उसका फेल हो गया 2022 या 23 में, द प्रोजेक्ट फेल्ड. बट ह्यूज कॉम्पिटिशन हैड कम इन द कॉफ़ी मार्केट, एंड यू नो द इंडियन कंज्यूमर लास्ट में जाके, गिवन द लो पर कैपिटा इनकम, वी बिकम वेरी वेरी प्राइस इलास्टिक, अरे प्राइस कॉन्शियस, ठीक है. तो जेप्टो वॉज डूइंग वॉट, वो देख रहा था उसको तो डिलीवरी देना है कॉफ़ी का. आई विल डाइग्रेस समटाइम्स व्हेन लॉजिक नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड. जब उसको कॉफ़ी का डिलीवरी देना है तो अगर छोटा जार दे या बड़ा जार दे, डिलीवरी कॉस्ट तो वही रहेगा. छोटा जार दे या बड़ा जार दे, जेप्टो का डिलीवरी कॉस्ट विल रिमेन व्हाट, सेम. तो वो जानबूझ के बड़ा जार देता था दूसरों के मुकाबले. तो ऑफिस में लोग कॉफ़ी का ऑर्डर किए और उसी से 3 पार्ट कर लिए, हाँ तीनों मिले खाओ. तो उस केस में तो पर यूनिट कॉस्ट बिकम्स लो ना. अंडरस्टूड. मतलब various things are done and then so many flavors and all that. तो Starbucks in order to compete post COVID के बाद, it also started delivery, कि home delivery allowed है. And therefore what happened is that the culture of going and sitting in Starbucks really came down. People are so much in a hurry, saving their time, आलस या क्यों जाएगा. But that was the whole concept of Starbucks. अब Starbucks को अपने दूसरे एंगल से देख रहे हैं. सर ये जो आप बोल रहे हैं ये सिलेबस में है क्या? एकदम सिलेबस में है. एक मिनट, जो मैं बोल रहा हूँ वो सिलेबस में है क्या? 100% सिलेबस में है. जो मैंने कैलकुलेशन बोला 10 और 20%, 32% निकालना सिलेबस में है क्या? एकदम MCQ का पार्ट है. तो आई विल नॉट गो आउटसाइड द टॉपिक, बट गिवन आई एम स्टार्टिंग आई विल टेक माई ओन टाइम, ठीक है. एंड आई हैव सीन इट हेल्प्स अ लॉट. तो सेकेंड, अब स्टारबक्स कोई अलग तरीके से ले रहे, ध्यान देना. स्टारबक्स का ऑन द होल कितना सारा स्टोर्स पूरे ग्लोबली है. हाउ मेनी स्टोर्स आर देयर? बाय द टाइम आई एम स्पीकिंग, समबडी इन द लाइव जो चैट कर रहा है यहाँ पे जो बैठा है वो प्लीज़ ढूंढे कितना स्टोर्स है, बिकॉज ये मैं फिगर मन से नहीं बोलना चाह रहा हूँ. हाउ मेनी स्टोर्स आर देयर अराउंड द ग्लोब? स्टारबक्स का हाउ मेनी स्टोर्स आर देयर अराउंड द ग्लोब? फटाफट प्लीज. हाउ मेनी स्टोर्स आर देयर अराउंड द ग्लोब? ठीक, काफ़ी है. 35,000 इज अ राउंड फिगर. 35,000 इज अ राउंड फिगर, डिपेंडिंग अपॉन कब का डेटा है, जरा जरा सा डिफरेंसेस आ सकता है, बट 35,000 इज अ गुड फिगर टू वर्क विथ. somebody saying 3,000, आई थिंक वो रॉन्ग है. कोई 38,000 बोल रहा है, कुड बी राइट. 35,000 पकड़ लेते हैं. ध्यान दीजिएगा आप लोग प्लीज. आई नीड सम कैलकुलेशन फ्रॉम यू. नॉर्मल कैलकुलेटर विल ऑल्सो डू. ओके, नॉर्मल मैंने फोन वाला कैलसी भी चलेगा अगर नहीं है तो. द मोर यू पार्टिसिपेट, बिकॉज आई हैव सीन वन थिंग, क्लास में तभी मजा आता है जब तुम थोड़ा सा शॉर्ट्स मारते हैं. सुनता नहीं है केवल. 35,000 स्टोर स्टारबक्स का है. सुनना प्लीज. फुटफॉल पर स्टोर पर डे, नंबर ऑफ फुटफॉल, आई थिंक समझ में आ रहा है. नंबर ऑफ फुटफॉल पर स्टोर पर डे, चेक करो बता पाए तो. फुटफॉल पर स्टोर पर डे, यहीं पे आलस नहीं करना. यही तो बात हो गया दुनिया का कि वी कैन रिसर्च एंड गो ऑन रिसर्चिंग. नंबर ऑफ, मैंने मैं क्या बोला, फुटफॉल इन स्टारबक्स स्टोर पर स्टोर पर डे कितना होता है. यानी जो पार्क स्ट्रीट वाला है उसमें एक दिन में कितने लोग जाते हैं? 500 दिखा रहा है. 500, मेरे को भी यही आइडिया था. इन इंडिया दिखा रहा है 500. अब 500 ही मान लेते हैं, छोड़ 500 मान लेते हैं. ध्यान देना 500. कोई 600 बोल रहा है, दैट्स ओके. 500 इज अ बॉलपार्क फिगर. नाउ 500 इज द फुटफॉल पर डे, ठीक है. रिमेंबर, पर स्टोर पर डे. एट द सेम टाइम टिकट साइज का मतलब ऑर्डर कितने का करता है लोग. मैं डॉलर टर्म से बात कर रहा हूं. इट मस्ट बी समवेयर अराउंड $8 to $10. चेक टिकट साइज स्टारबक्स के स्टोर में क्या होगा? $6 बोल रहा है कोई, ठीक है. तो $6 to $8 टिकट साइज का मतलब समझ रहे हो ना. तो अपना $6 अपने हिसाब से हो गया 500 रुपये. उतना ही तो लोगे. एक कॉफ़ी लोगे, कुछ खाने का लोगे.
इट्स लाइक 500 रुपीज़, ठीक है, तो $10 कोई बोल रहा है, दैट्स फाइन। तो इन दैट केस $8 मान लेते हैं, $8, आई थिंक फिगर्स अंडर योर कंट्रोल, 35,000 स्टोर्स, उसके अलावा मैंने क्या बोला, 500 इज द फुटफॉल एंड $8 इज द टिकट साइज एंड नंबर ऑफ डेज जो स्टारबक्स ऑपरेट करते हैं थ्रू आउट द ईयर, लेट्स टेक इट टू बी अराउंड, मेरे ख्याल से बंद नहीं होते कोई दिन, राखी होली हर दिन ही खुला हुआ है, तो 360 मान लेते, 360 डेज, 360 डेज। तो in that case, now if you look at the unitary method maths, the revenue of Starbucks would be 35,000 multiplied by 500 multiplied by 8 multiplied by 360. Please do it. आप 1000 को हटा सकते हो, इन 1000 बोल सकते हो, जिससे फिगर अगर अटे रही कैलसी में, तो 35,000 into 500 into 8 into 360. Yes. ठीक है, कितना 5.5 मिलियन बिलियन, ओके, $5.5 बिलियन लोग बोल रहे हैं, ओके, $5.5 बिलियन राउंड फिगर ले रहे हैं, 5 बिलियन लेने बेटर रहेगा, इजी है, अपने जितना आपने इजीली डिस्कस करें, कौन सा अपना फिगर्स राइट है, सब तो गार्बेज इन गार्बेज आउट है, ठीक है, वही तो रिसर्च है। तो $5 बिलियन, और आई कांट एक्सप्लेन टू यू, अभी 2 दिन पहले या 3 दिन पहले फ्लेम यूनिवर्सिटी, आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड, स्पेशली द क्लास 12 गाइज, दोज हू आर लुकिंग एट कहाँ एडमिशन ले कहाँ नहीं ले, तो फ्लेम यूनिवर्सिटी मस्ट ऑल्सो हैव बीन वन ऑफ द ऑप्शंस। तो वहाँ पे देयर वाज 2 days का देयर वाज इलोंगेटेड डिस्कशन ऑन AI इन इन्वेस्टमेंट रिसर्च। AI इन व्हाट? इन्वेस्टमेंट रिसर्च। अपना काम इन्वेस्टमेंट रिसर्च ही है, एंड द प्रेजेंटेशंस एंड ऑल दैट, एंड द कंक्लूजन ऑफ ऑल दैट प्रेजेंटेशन वाज दैट फ्यूचर में जो लोग CFA कर रहे हैं या CFA नहीं कर रहे, ऐसे ही एनालिस्ट बन रहे हैं, उन लोग के लिए खतरा भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। मैं शुरू में जो बोला कि सारा काम AI कर दे रहा है, तुम क्या एक्सेल सजाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो फिर तुम्हारा काम क्या होगा? मैनेजमेंट को जाके मिलना, वो मिल के समझना अंदर का बात क्या है। और अपने को CFA प्रोग्राम एथिक्स में बोलता है इनसाइडर ट्रेडिंग इज नॉट अलाउड। खैर, अपने मोज़ेक थियरी का बात करें, दोज हू हैव डन दे विल अंडरस्टैंड बेटर। ड्रॉइंग इनसाइट्स फ्रॉम द मीटिंग्स, फ्रॉम द प्लांट विजिट्स, applying your judgment and patience in so much of noise that even bosses are carrying out, as in Trump is carrying out all the noise, how to prevent yourself, मतलब actually जाके meditation, yoga and all that could be a much more better investment as compared to just filling up Excel sheets, whatever. तो कोई और मौका मिला जब ये वाला चैप्टर आएगा तो we'll discuss more in depth about it. It's not about कौन सा टूल अभी काम कर रहा है, नोटबुक या ग्रोक या क्लॉड या whatever, it's more about the philosophy. Anyways, so $5 billion स्टारबक्स का सेल्स था, $5 billion. I hope somebody who's very very mathematically tuned should not catch my collar. That's आपका तो यहाँ $150 billion आया था, देख रहे हो? तो मैं ऑब्वियसली दोनों के दोनों फोरकास्ट को मिला रहा नहीं था. I was not at all, and my figures over there, I think $500 billion is not the global coffee size. चेक करो ना एक बार, मेरे को लग रहा है मैंने बहुत बड़ा ले लिया वो 350 बिलियन. और स्टारबक्स का शेयर जो है ना वो भी 30% नहीं होगा, 10% होगा. तो 350 का 10% ले तो क्या हो गया 35. तब भी लगता है ज़्यादा ही बोल रहे हैं, whatever, ठीक है. एनीवेज, तो इट शुड बी मतलब जो शुरू का मैक्रो फिगर्स था वो बहुत गलत था अपना, ठीक है. तो अभी जो अपने सेकेंड इक्वेशन बोले कि स्टारबक्स का रेवेन्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टोर्स मल्टीप्लाइड बाय फुटफॉल मल्टीप्लाइड बाय क्या, टिकट साइज मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, नंबर ऑफ डेज. ऐसे लिख दो डी. अब आपको अगर फोरकास्ट करना है नेक्स्ट 4 साल का, वी आर स्टैंडिंग सपोज एट द एंड ऑफ 2025 कैलेंडर ईयर, दिसंबर 2025 के एंड में खड़े हैं और अपने को 2026, 27, 28, 29, 30 5 साल का फोरकास्ट करना है स्टारबक्स का, कि सही आने वाले 5 साल में स्टारबक्स का सेल्स क्या होने वाला है. नाउ दिस इज अ मॉन्यूमेंटल टास्क.
unless and until somebody is bound in doing GIGO, garbage in garbage out. क्योंकि नंबर ऑफ स्टोर्स किस रेट से एक्सपैंड होगा, तो कहीं ना कहीं स्टारबक्स का जो मैनेजमेंट कमेंट्री होगा ना, व्हेन दे कम आउट विद अर्निंग्स रिपोर्ट, हर क्वार्टर में स्टारबक्स कम आउट विद अर्निंग्स रिपोर्ट कि इस क्वार्टर का रिजल्ट्स क्या है, द पीएल अकाउंट, द बैलेंस शीट, एंड एवरी क्वार्टर के एंड में दे डू एन इन्वेस्टर कॉल, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, जो कोई भी अटेंड कर सकता है, तुम भी। फॉर एग्जाम्पल सपोज तुम इतना इंस्पायर्ड हुआ मेरे से, ठीक है, कमती लोग होते हैं बिकॉज मैं मोटिवेशन कमती देता हूँ, बट अगर इंस्पायर्ड हुआ और तुमने सोचा यार 3-4 कंपनीज है उनका कॉन कॉल अटेंड करूंगा ही मैं, एप्पल का, टेस्ला का, ठीक है, 10 मैंने अलग अलग 4-5 कंपनी तुमने सोच लिया, एंड वेन एवर दे 3-3 महीना में जो कॉन कॉल हो रहा है ना उनका, उनके वेबसाइट पे जाकर तुम रजिस्टर किया एंड यू आर अटेंडिंग इट फ्रॉम योर हाउस। जस्ट अंडरस्टैंड, वही कॉन कॉल में वॉरेन बफेट इज सिटिंग and is listening to the con call, you are also sitting. If he is sitting, he is not sitting for the purpose of time pass ना। इसका मतलब you are applying your time into that activity which is most required। वो con call का अपने, because con call से क्या होता है, एक आदमी का जो पिच है, बोलने का तरीका, जोश अवॉइड करने का, तुम मेरे से कोई डाउट पूछ रहे हो अभी और डाउट पूछ रहे हो और मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ एक सर्टेन तरीके से, बुद्धिमान आदमी को ठीक समझ में आ जाएगा सर यहाँ पे अवॉइड किए डाउट, या तो अवॉइड किए बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी ऑफ टाइम, इररिलेवेंट डाउट था, या सर को वो आता नहीं था, विदाउट एक्नॉलेजिंग ही हैज अवॉइडेड द डाउट। इट हैपेंस, वी हैव टू बी क्लियर कट अबाउट इट, एंड हाउ डू आई नो एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, इट मे हैपन, बट येट एटलीस्ट एज अ टीचर आई हैव अंडरस्टूड वन थिंग, टू एक्नॉलेज दैट आई डू नॉट नो, ठीक है। तो एनीवेज, तो वो डाउट अवॉइड कर, और खास कर अगर वो फ्रॉड के बारे में है। मैंने एक एनालिस्ट ने कॉन कॉल में स्टारबक्स को पूछा है कुछ ऐसा क्वेश्चन जो कि इसके पीएल के एक सर्टेन एक्सपेंस के बारे में है। लगता ही क्या है, पीएल में आइटम चेपना, अदर एक्सपेंस, तुम समझ रहे हो, तुम खर्चा करके आए हो, मैंने तुमको 2000 रुपया दिए, तुम खर्चा करके आए हो और आके तुम दिखा रहे हो कि यहाँ इतना खर्चा हो, यहाँ इतना और 400 अदर एक्सपेंस। व्हाट इज अदर, ठीक है, बिकॉज 400 बाई 2000 25% ना, व्हाट इज अदर एक्सपेंस। सत्यम का जो कॉन कॉल हुआ था, सत्यम का, बिफोर सत्यम डुबाया, उसके कॉन कॉल का अगर कोई अभी भी जाके ट्रांसक्रिप्ट पढ़े, उस पर साफ साफ एनालिस्ट ने उससे पूछा कि आपका ये जो फॉरेन करेंसी का लॉस दिखाया हुआ है ये कहाँ से एक्सप्लेन कीजिए, एंड व्हाट वाज द रिप्लाई गिवन बाय राजू। इफ यू लिसन टू इट इवन नाउ यू विल एक्नॉलेज पोस्ट फैक्टो, सर ये तो हम ही बता देते ये क्या हो रहा है पोस्ट फैक्टो, बट अदरवाइज हु हैज द एफर्ट ऑफ एक्चुअली अटेंडिंग द कॉन कॉल एंड लिसनिंग टू इट। और कॉन कॉल के बाद वो जो पूरा ट्रांसक्रिप्ट आता है, क्या आता है, ट्रांसक्रिप्ट जो के विथ यू, जो यूट्यूब का ट्रांसक्रिप्ट होता है, वो ट्रांसक्रिप्ट का इफ यू पुट इन अ नॉर्मल एआई मॉडल देयर इज अ सेंटिमेंट एनालिसिस। व्हाट एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस क्या करेगा, वो जो इज आर एम वर्ड को छोड़ के जो बाकी वर्ड्स है ना, उनका 1, 0 और -1 स्कोर देगा। एआई को ट्रेन कर दिए, 1, 0, -1 स्कोर देगा सेंटिमेंट एनालिसिस। तो टोटल जो ट्रांसक्रिप्ट हुआ उसमें से कुछ वर्ड्स को स्कोर 1 मिल रहा था जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स था, जहां मैनेजमेंट जोर का बोल रहा था, फाड़ देंगे हम लोग, ठीक है, कुछ 0 था और कुछ क्या था -1 जहां पे वो लोग डिफेंसिव थे। वो पूरा सेंटिमेंट एनालिसिस करके सेंटिमेंट स्कोर आएगा, एंड दिस विल हैपन ऑन रियल टाइम बेसिस। वहां वो कॉन कॉल चल रहा है, यहाँ पे वो ट्रांसक्रिप्ट निकल रहा है, यहाँ पे सेंटिमेंट एनालिसिस हो रहा है, वहां पे सौदा मारा जा रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? It's happening at rocket speed via algo. The same algo is doing that. It's taking the con call, taking the transcript, doing it, and those who are able to do it fast and with much more fine tuning कि 1, 0 और -1 क्यों सर, उसके अंदर भी हम लोग जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बोले उसका डिग्रीज होगा, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, -1 का -1A, -1B होता है ना। मैं कितना खराब बोल रहा हूँ, मैं कितना डिफेंसिव बोल रहा हूँ, एक डिग्री भी तो आ सकता है। देयर इज द रिफाइनमेंट। तो वेयर इज इक्विटी एनालिस्ट हेडेड टुवर्ड्स? इक्विटी एनालिस्ट इज हेडेड टुवर्ड्स दिस, applying all your brains and common sense into using AI. AI will not do anything for you, ठीक है। तो in that case वो सेंटिमेंट एनालिसिस हो रहा है, जिससे अपने रीड कर रहे हैं ये लोग नंबर ऑफ स्टोर्स के बारे में क्या बोले हैं। सपोज अभी स्टारबक्स का जो अपने बोले कि 2020 के बाद प्रॉब्लम हुआ ट्रेंड के कारण, कल्चरल शिफ्ट के कारण, ये एक प्रॉब्लम हुआ। दूसरा प्रॉब्लम हुआ इसका जो भी स्पेसेस है, दे आर इन प्राइम प्रॉपर्टीज और बेकार प्रॉपर्टीज। तो अकॉर्डिंगली द लीजेस आर एट वेरी वेरी हाई रेट, द लीजेस आर एट वेरी वेरी हाई रेट। वो लीज रेंटल तो चल रहा है, लोग जाए या नहीं जाए,
एक पर्टिकुलर जागरण मोर्चा, देसी जागरण मोर्चा चालू हो जाएगा महाराष्ट्र में और जाके मारेगा लोगों को जो लोग स्टारबक्स में है, ठीक है। इट मे हैपन ओवर हियर, यू नेवर नो, दे आर ऑल फंडेड and it will just, but the rent has to go, na, the rent will go, the rent cannot be stopped, the overhead cannot be stopped, AC तो run होना पड़ेगा. So their costs have really scaled up, they are not able to increase the prices वगैरह वगैरह. तो these are the challenges. अब स्टारबक्स में एक नया CEO अपॉइंट हुआ, वो नया CEO जो है वो अलग अलग चीज लाया है, he has thought about new schemes. तो in that case we have to analyze now, चाहे वो हॉस्पिटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो रिटेल ट्रेंट और ये सब हो, पैंटलून हो, चाहे वो स्टारबक्स हो, ये सब इंडस्ट्री में यूनिट इकोनॉमिक्स वर्क्स वेरी वेल. यूनिट इकोनॉमिक्स क्या हुआ, सुनना ठीक से प्लीज. आई एम नॉट फिलिंग द फिगर्स, आई एम जस्ट शोइंग सर्टन थिंग्स. सपोज यहाँ पे मैंने लिखा रेवेन्यू, ये ईयर्स है 2021, 2022, 2023, 2024. प्लीज पे अटेंशन. और ये रेवेन्यू का फिगर सोचो लिखा हुआ है स्टारबक्स का, ये तो 4 साल का पास्ट फिगर है, इजीली मिल जाएगा स्टारबक्स का लास्ट रेवेन्यूज. उसके बाद मैंने लिखा है नंबर ऑफ स्टोर्स, नंबर ऑफ स्टोर्स लिखा है. उसके बाद मैंने लिखा है नंबर ऑफ कस्टमर्स ऑन द होल, पूरे साल के नंबर ऑफ कस्टमर्स. उसके बाद मैंने लिखा है कस्टमर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टोर्स, कस्टमर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टोर्स. इससे निकला आपका फुटफॉल. क्या निकला आपका? फुटफॉल. अब अगर ऐसा होता है कि जो फुटफॉल है ना, देखो n इज गोइंग अप, व्हाट इज गोइंग अप? n इज गोइंग अप, f इज कमिंग डाउन. ये जो इक्वेशन था अपना, इसमें n इज गोइंग अप एंड f इज गोइंग डाउन, दे आर नेगेटिवली कोरिलेटेड. दिस इज कॉल्ड कैनिबलाइजेशन. व्हाट इज इट कॉल्ड? कैनिबलाइजेशन. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन द रिटेल इंडस्ट्री. इसका मतलब स्टारबक्स अगर पार्क स्ट्रीट में खुला हुआ था तो उसको थिएटर रोड पे भी खोल दिया और एक स्टारबक्स, और उसके बाद एल्गिन में भी खोल दिए, तो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? जो लोग थिएटर रोड के पार्क स्ट्रीट पे जाते थे, ठीक है, या एल्गिन के पार्क स्ट्रीट में जाते थे, वो अब एल्गिन के एल्गिन में जाएंगे. यानी लोग तो वही है. मैं यहाँ पे एक सेंटर खोल रखा हूँ, ट्यूशन सेंटर, मैं और एक सेंटर खोल देता हूँ राम मंदिर या काकुड़गाछी में, तो जो लोग उधर से आते हैं वो लोग उधर ही चल जाएंगे. क्या मेरा रेवेन्यू इंक्रीज होगा? नहीं. तो इट विल शो अप. इफ आई काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेंटर्स, आई विल फाइंड दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर सेंटर विल व्हाट? फॉल. द नंबर ऑफ सेंटर्स आर गोइंग अप. तो एज एन एनालिस्ट आई गॉट टू चेक, अगर ये हो रहा है तो स्टोर एक्सपेंशन इज अ लॉजिकल utilization of funds or a illogical utilization of funds. Illogical store expansion. But if I find that n is going up and f is going up, n is going up and f is going up, या f is remaining the same, f is remaining the same भी चलेगा. इसका मतलब n is a great driver. क्या ड्राइवर है ये रेवेन्यू का? क्योंकि फुटफॉल को मेंटेन कर पा रहा है, कैनिबलाइजेशन हो रहा नहीं है. तो आई वुड बी रियली ऑन द लुकआउट मैनेजमेंट से. जो भी बड़े बड़े हाउसेज हैं, एक फैमिली ऑफिस है, एक म्यूचुअल फंड मैनेजर, एक प्राइवेट इक्विटी फंड मैनेजर है, इन लोग का रेड कारपेट ट्रीटमेंट है इनटू ऑल दीज कंपनीज. आइए, पधारिए, क्या लेंगे? बोले स्टारबक्स कॉफी. But I mean to say they are really buttered because they are the ones who are going to buy the shares or sell the shares. तो उनसे मैनेजमेंट बहुत अच्छे से बातचीत करता है. मैनेजमेंट हैज टू से कि आपका, अगर मैं पूछ रहा हूँ, आई एम एन एनालिस्ट, आई एम आस्किंग द सीईओ, व्हाट प्लान्स डू यू हैव अबाउट स्टोर एक्सपेंशन, व्हाट प्लान्स डू यू हैव अबाउट स्टोर एक्सपेंशन. आई वुड लाइक टू सी वो कितना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है. क्या बोल रहा है ऐसे इंपॉर्टेंट है, कैसे बोल रहा है, कितना देर बोल रहा है, किस क्लैरिटी के साथ बोल रहा है. ठीक है, ये काफी बार एआई फॉल्ट करेगा इसको समझने में, एक आदमी का नेचर समझने में. उसके अलावा इफ आई गो टू एआई, तो लिसन टू मी, व्हाट हैपेंस इज दैट, मैंने देखा न्यू कंस्ट्रक्शन परमिट्स, जैसे नया नया कंस्ट्रक्शन होता है ना, अगर बिल्डिंग परमिट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो डेवलप्ड नेशंस में तो खासकर वो बिल्डिंग परमिट्स वगैरह उनके केएमसी के पास बहुत प्रॉपरली फाइल होते हैं एंड दे आर ऑल डिजिटलाइज्ड. So there is an AI which is picking up new building permits which are being submitted and permission granted, new building permits.
और वो बिल्डिंग परमिट्स में से हाउ मेनी बिल्डिंग परमिट्स आर रिलेशन टू क्या बोलते हैं कॉफी सेंटर्स या कोई और कॉन्टेक्स्ट में। माने कितने बार ऐसा हुआ है कि एआई जो है ग्लोबली देख रहा है कितना बिल्डिंग परमिट्स मिल रहा है और वो बिल्डिंग परमिट्स इस टाइप का कितना है और अकॉर्डिंगली इट इज रेजिंग से रेड फ्लैग, देखो बहुत ज़्यादा राइज हो गया है या बहुत ज़्यादा फॉल हो गया है, दैट गिव्स एन अर्ली वार्निंग सिग्नल दैट यार यहाँ पे तो बहुत जोर से ग्रोथ आने वाले। माने इमेंस द बिग डेटा, द मशीन लर्निंग, द इमेजेस दैट आर टेकन, ठीक है, सैटेलाइट इमेजेस कि अगर स्टारबक्स का है और जिसपे पार्किंग लॉट है तो पार्किंग में कितने गाड़ियां पार्क्ड है, कितने फ्रीक्वेंसी से गाड़ी वहां पे रह रही है, निकल रही है, आ रही है, ठीक है। ऑल दीज आर सीन बिकॉज दीज वर नेवर हिस्टोरिकली एनालिस्ट का देखा हुआ, बट नाउ दे आर पॉसिबल बिकॉज दैट इज बिग डेटा। Big data is textual data, big data is visual data, big data is imagery data, big data is social media data। अब ये ग्रोक क्या करता है, GROK, ग्रोक का ट्विटर का इसके पास पूरा का पूरा फीड है, तो ये ट्विटर का फीड से देख के देखता है पॉजिटिव सेंटिमेंट एनालिसिस अबाउट कंपनी। नोटबुक क्या कर रहा है, नोटबुक के पास यूट्यूब का फीड है, वो यूट्यूब का जितना भी वीडियोज है दुनिया भर उसको लेके तुरंत उसका पॉजिटिव नेगेटिव सेंटिमेंट एनालिसिस कर दे रहा है। आई एम सरप्राइज्ड दैट CFA इंस्टीट्यूट ने कैसे 2026 के लिए इक्विटी का करिकुलम चेंज नहीं किया। उनको नए ऑथर को फॉलो करना चाहिए था और ये सारे चीज को लाना चाहिए था। दे हैव नॉट। 2027 में डेफिनेटली दे आर गोइंग टू चेंज इट, ठीक है। एंड देयरफॉर CFA स्टूडेंट इज ऑलवेज अ स्टूडेंट बिकॉज ही कीप्स ऑन रिविजिटिंग कि CFA इंस्टीट्यूट नया ऑथर क्या लाया है, नया रीडिंग क्या लाया है, बिकॉज दैट्स वेरी हाई क्वालिटी स्टफ विच दे राइट। आई एम सरप्राइज्ड, मेरे ख्याल से लैकलस्टर ओपिनियन है, कितना ज्यादा चेंज हो गया एनालिस्ट कम्युनिटी में एंड दे आर स्टिल सैडल्ड विद द सेम चैप्टर। अभी मैंने जो दो चीज पढ़ाया वो सिलेबस वाइज, देयर इज एन LOS लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट ऑन हाउ डू यू एनालाइज द रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी। कोई भी कंपनी का रेवेन्यू आप कैसे एनालाइज करेंगे। अगर BCom वाइज जवाब दे तो देयर आर टू मेथड्स, मेथड 1 टॉप डाउन, मेथड 2 बॉटम अप। मेथड 1 टॉप डाउन, मेथड 2 बॉटम अप। टॉप डाउन मार्केट साइज इनटू मार्केट शेयर, मार्केट साइज इनटू मार्केट शेयर जो अपने कर रहे थे, ठीक है। बॉटम अप इज नंबर ऑफ स्टोर्स इनटू फुटफॉल इनटू टिकट साइज इनटू नंबर ऑफ डेज। हर जगह जरा सा वेरिएशन फॉर्मूला होगा। यू गॉट द स्टफ। टॉप डाउन बॉटम अप, यूजुअली अ गुड एनालिस्ट will carry out both the methods top down and bottom up and he will then reconcile if there is a major difference कि top down से 35 बिलियन आ रहा है और bottom up से जो है वो 5 बिलियन आ रहा है, इसका मतलब 100% वो wrong है। There could be minor differences in terms of your forecast top down and bottom up, but there can't be a major difference ना। So you get the checks and balances because ultimately what are you doing? You are forecasting the future. You don't know about your future. किसी को भी अपना फ्यूचर पता है कि क्या होगा एग्जैक्टली और अपने यहाँ बात करें लाखों कंपनीज हैं, उन लाखों कंपनीज में से एक कंपनी को अपने खोजना है जो सोना है, जिसका दाम गिरा हुआ, मतलब जो तारे जमीन पे है, जो है तारा, which is a great company with a great business model and a great revenue potential and a great profit margin and still trading at low prices, even though lakhs of people like profit hungry investors are in the lookout for such company, but तेरे को ही मिला वो। Are you getting me? सुबह से रात तक, रात से सुबह तक लोग दम लगा दे रहे खोजने में ऐसा कंपनी जो तारे जमी पे टाइप है, जिसपे दम है पर फालतू में गिरा हुआ है, और आपको लगता है आपको ही वो मिला है, तो सबसे पहले तो आप अपने ऊपर शक करो कि लगता है मैंने ही कुछ गलती किया होगा। बट देन इफ यू हैव डीप कन्विक्शन, बिकॉज मार्केट्स कैन मेक मिस्टेक, दे हैव मेड मिस्टेक्स इन द पास्ट, मार्केट्स कैन मेक मिस्टेक। तो इफ यू कैन आइडेंटिफाई and still if you can identify also, उसके बाद भी we say that you are not God, and since you are not God, therefore you invest all your money into that particular company or into such other companies. Maintain a diversified portfolio. Maintain a diversified portfolio. If you really done very very good equity analysis and you maintain a diversified portfolio, believe me, it will so happen that some of the stocks, they will not go up 5 times or 10 times or 100 times or 1000 times, they will go up 1 lakh times. The type of valuations that are running in the marketplace are absurd. Perplexity, उसका valuation जब पहले हुआ था 2022 में, it was valued at 500 times sales. क्या बोला?
500 times sales, मतलब the value of perplexity is 500 times revenue. That's unimaginable. एक प्राइस अर्निंग रेशियो आपने सुना होगा शायद, पीई रेशियो, दैट इज प्राइस इज हाउ मेनी टाइम्स अर्निंग्स, बिकॉज यू पे फॉर द अर्निंग्स. वो भी 500 टाइम्स इज लाइक अनइमेजिनेबल, बट रेवेन्यू का 500 टाइम्स, बिकॉज अर्निंग्स का करे कैसे करे. परप्लेक्सिटी तो लॉस मेकिंग कंपनी, उसका तो अर्निंग्स नेगेटिव है, तो अर्निंग का कर नहीं पा रहे. अंडरस्टूड. सो एलओएस वाइज अपने रेवेन्यू ड्राइवर जो है ना, उसका अच्छा डिस्कशन अभी किए. ठीक है सर, रेवेन्यू ड्राइवर का अपने डिस्कशन क्यों किए हैं? आपने इसलिए डिस्कशन किए हैं बिकॉज आप एक कंपनी को एनालाइज करोगे. एनालाइज करोगे का मतलब क्या हुआ? उसका पास्ट एनालिसिस करेंगे. पास्ट एनालिसिस करने का मतलब क्या हुआ? उसका टाइम सीरीज एनालिसिस करेंगे एंड क्रॉस सेक्शन एनालिसिस करेंगे. ठीक है सुनना, टाइम सीरीज एनालिसिस और क्रॉस सेक्शन एनालिसिस. टाइम सीरीज एनालिसिस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो कंपनी पास्ट में क्या किया है, क्या बेचता है, किसको बेचता है, कैसे बेचता है, किस दाम पे बेचता है, और जो बेचता है वो प्रोड्यूस कैसे करता है, सप्लायर्स कौन है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है कंपनी का, उसका बैलेंस शीट में डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन क्या है, कंपनी जो पैसा रेज करता है वो कहां पे इन्वेस्ट करता है, बर्बाद कर रहा है या डिविडेंड दे रहा है शेयर होल्डर्स को, ग्रो करने वाला है या ग्रो नहीं करने वाला है. ये सारा अपने पास्ट एनालिसिस मींस ड्राइवर्स. हर चीज का ड्राइवर्स है. अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ड्राइवर निकाल रहे थे. व्हाट इज दैट? रेवेन्यू drivers. You have to identify the KPIs, the key performance indicators, the key risk indicators of the company, the cost का indicators, the revenue का indicators. एक एक आइटम के अंदर जाएंगे. ठीक है, उसको एनालाइज करेंगे और एनालाइज करके जो फोरकास्ट निकालेंगे कंपनी का, फोरकास्ट, सॉरी उसके पहले मैंने बोला टाइम सीरीज एनालिसिस करेंगे एंड कौन सा वर्ड यूज किया था, इफ यू रिमेंबर, क्रॉस सेक्शन. क्रॉस सेक्शन का मतलब हो गया बाकी प्लेयर्स जो इंडस्ट्री में है, कॉफी इंडस्ट्री के बारे में डिस्कशन. ओके, बाकी प्लेयर्स जो इंडस्ट्री में, उस पर कितना फियर्स कंपटीशन है. इफ प्लेयर्स आर एंटरिंग अ प्राइस वॉर, इफ प्लेयर्स आर एंटरिंग अ प्राइस वॉर एंड द थिंग इज बिकमिंग कमोडिटाइज्ड. कमोडिटाइज्ड बने क्या होते हैं? आज CFA प्रोग्राम है, उसका आई एम चार्जिंग अ सर्टेन फीस विथ यू. देयर आर से 1000 मोर प्लेयर्स कम इनटू द CFA कोचिंग इंडस्ट्री and they come out with a price war. The price comes down 20, 15, 10, 5, 2, 1000, 500. Are you understanding? It happens to that level and people are really price elastic. They do not understand that यार ये तो better पढ़ाएंगे नहीं, उससे मतलब नहीं है, CFA ही तो पढ़ा रहे हैं. माने it becomes a commodity. That's called commoditization. अगर किसी इंडस्ट्री में तुम्हारा पैसा लगाया हुआ है शेयर मार्केट में और वो इंडस्ट्री कमोडिटाइज्ड हो रहा है, इट इज टाइम दैट यू कम आउट ऑफ दैट सेक्टर, नॉट दैट कंपनी. उस सेक्टर से बाहर निकलो, बिकॉज वो सेक्टर आपको कमा के नहीं देने वाला है. इट हैज बिकम कमोडिटाइज्ड. इनफैक्ट वो जो मैनेजमेंट है उस कंपनी में, मैनेजमेंट जो उस बिजनेस में है, उन लोग को ये बुद्धि होना चाहिए कि वो डॉग बन गया है वो सेक्टर, और उससे निकल के दे शुड मूव इनटू सम अदर सेक्टर. ओके, दे शुड मूव इनटू सम अदर सेक्टर. If we change the entire tone and talk about a totally different company, I will be within the correct context of the syllabus. Don't worry about it. ठीक है ना? So let's talk about Amazon. Amazon कौन कौन से बिजनेस में है? वरुण जैन बोल रहा है कमोडिटी मीन्स व्हाट? कमोडिटी का मतलब बोलना चाह रहे हैं आलू भिंडी. अब नीचे स्तर पे उतरते हैं, बोलना चाह रहे हैं सब जन आलू बेच रहे हैं और एक जन आलू का दाम चार्ज कर रहा है 200 रुपया, एक जन 20 रुपया. जनरली 200 रुपया से कोई भी आलू लेगा नहीं, बिकॉज ऐसा कौन सा आलू 20 का 22, 24 ऑर्गेनिक हो सकता है, 16, 18 हो सकता है, बट 20 का 200 इज वेरी वेरी अनटॉलरेबल. तो अपने ये बोलना चाह रहे थे कि देर इज नो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, देर इज नो ब्रांड, देर इज नो वैल्यू विच आई एम पुटिंग ऑन द टेबल. मैं ऐसा कुछ डिफरेंशियल नहीं करा रहा हूँ, तो व्हाई वुड समबडी पे? दैट वाज द मीनिंग ऑफ कमोडिटाइजेशन. या तो आई वाज सेइंग Amazon. हाँ, Amazon का बिजनेस पूछ रहे हैं. ठीक है, कई सारे जवाब वहां पे आ रहे हैं. यू ऑल कैन ऑल्सो रिप्लाई. ये लोग बहुत जोश में हैं जो लोग लाइव ऑनलाइन कर रहे हैं. Amazon का क्या बिजनेस है? क्लाउड सर्विसेज है. क्लाउड सर्विसेज AWS.
ये जो क्लासेस चल रहा है, जो डिलीवर हो रहा है क्लासेस स्टूडेंट्स के पास, दैट्स हैपनिंग थ्रू AWS। ठीक है, जस्ट वन सेकेंड। तो जितने भी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस थे, एक जमाने पे वो लोग को बड़ा सा हार्डवेयर सिस्टम में इन्वेस्ट करना पड़ता था। इफ आई वेयर टू रिले माई क्लासेस, आई हैव टू इन्वेस्ट इन अ हार्डवेयर सिस्टम and maintain that. As a result of the cloud system, it has become so much easy for everybody to start business, no doubt about it. 2005 करीब में it entered into the cloud services business, and today Amazon का AWS cloud is the most profitable segment, is the most profitable segment, सबसे ज़्यादा profitable segment है, okay, जो cloud segment है उसका। उसके अलावा क्या business है? E-commerce, you all wanted to say e-commerce। तो बुक स्टोर चालू हुआ था, ऑनलाइन बुक स्टोर, और धीरे धीरे ऑनलाइन सब कुछ बेचना चालू कर दिया। ठीक है, तीसरा, मेनी पीपल आर सेइंग एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट, अमेजॉन पे SSCI का क्लासेस ही बिक सकता है, वी कैन एडवर्टाइज, दे आर अलाउइंग द स्पेस, जस्ट लाइक वी एडवर्टाइज ऑन गूगल और वॉट एवर। तो एडवर्टाइजमेंट, ऑल दो मर्चेंडाइज का ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे होता है। उसके अलावा प्राइम, यानी क्या हो गया, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन, तो 4 बिजनेस अमेजोन का हुआ। बहुत हो गया तो फिर अदर्स में डालना पड़ेगा उसको। ठीक है, अगर 4 बोलते हैं, ठीक है, तो 4 बोलते हैं। तो वन इज योर ई-कॉम, सेकेंड इज योर, यू हैव टू बी इंटरेस्टेड, आई एम टॉकिंग प्रैक्टिकल, हाउ कैन यू नॉट बी इंटरेस्टेड। तो वन इज ई-कॉम, द सेकेंड इज AWS, थर्ड इज एडवर्टाइजमेंट, फोर्थ इज सब्सक्रिप्शन। ये 4 बिजनेस है। चारों बिजनेस का मैंने आपको टैम बता दिया, सपोज टोटल एड्रेसेबल मार्केट और मार्केट साइज बता देता हूँ, किसका 300 बिलियन, इसका 500 बिलियन, इसका 1000 बिलियन, इसका इतना बिलियन। और चारों में मैंने आपको मार्केट शेयर बता दिया कि अमेजॉन का मार्केट शेयर क्या है। तो क्लाउड में इट में माइट बी 30%, एडवर्टाइजमेंट में माइट बी 5%, ठीक है, तो ई-कॉमर्स में भी 20%, सब्सक्रिप्शन में इट में भी 10%। तो अकॉर्डिंगली, एंड चारों का चारों, इस बार मैं आगे जा रहा हूं, मैंने आपको बता दिया द नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ ईच सेगमेंट। क्या? नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ ईच सेगमेंट, नेट प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन इज 18%, इसका मतलब जो भी अपने सेल करते हैं, 100 रुपये का सेल करते हैं, तो प्रॉफिट कितना बचता है? 18। आफ्टर ऑल द खर्चा, आफ्टर ऑल द टैक्सेशन, आफ्टर ऑल द इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट 18%, दैट्स कॉल्ड नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो आई एम गिविंग यू द टैम, I am giving you the market share, I am giving you the net profit margin. TAM, market share, net profit margin. If you multiply them, it is not a formula कि total addressable market में अपना share कितना और उसपे अपने कमाते कितना है। तो in that case, you will get the net profit for each segment. If you add the net profit of all the segments, you will get the total net profit. Easily executable, total net profit. Now, there are 2 ways people go about valuing Amazon. Some people believe that नहीं सही है, जो चारों सेगमेंट्स है ना, चारों सेगमेंट्स, इनका एकदम इकोनॉमिक्स अलग है, इनका इकोनॉमिक्स अलग है। देखो, आप इनको इस तरह से ऐड मत कीजिए वैल्यूएशन करने के लिए, ठीक है, ऐड नहीं करते हैं। तो आपने क्या किए, जो फर्स्ट वाला सेगमेंट था, सुनना प्लीज, फर्स्ट वाले सेगमेंट में कुछ फिगर्स यूज कर रहा हूँ। ई-कॉमर्स मार्केट ऑन द होल, बता दो आप लोग ये नंबर्स। ई-कॉमर्स मार्केट कितना बड़ा है ग्लोबली? टेक द पेन ऑफ यूजिंग योर फोन, प्लीज बी एक्टिव। E-commerce market, global e-commerce market, trillion. Okay, she is saying 26 trillion. ठीक है, तो 26 ट्रिलियन डॉलर्स, 25 ट्रिलियन डॉलर्स, कोई 8 ट्रिलियन डॉलर्स बोल रहा है। 26.82024 का काफ़ी जगह, 25 ट्रिलियन इज अ बिग फिगर बिकॉज इट रिलेटेड टू मास कंजम्पशन ना। तो 25 ट्रिलियन डॉलर्स अगर टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, मार्केट साइज है, और अमेजोन का मार्केट शेयर क्या है वो भी चेक करो। इतने सारे मॉम एंड पॉप स्टोर्स है, तो शुड नॉट बी वेरी हाई, 10% से ऊपर तो नहीं होना चाहिए आई थिंक। 37%। यूएस का तो नहीं है ना, इफ यू आर चेकिंग प्रॉपरली। ग्लोबल यार 10 to 15% ग्लोबली, ठीक है, तो सपोज 10% मान लेते हैं, यूएस में हाई होगा ऑब्वियसली। सो
$25 ट्रिलियन का 10% इज $2.5 ट्रिलियन रेवेन्यू, ठीक है। देखो मार्जिन बताता है क्या, मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन इन द ई कॉमर्स स्पेस बहुत कम होते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन फॉर अ ग्लोबल ई कॉमर्स प्लेयर 10% लोग बोल रहे हैं, तो 10% इज द नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो 25 ट्रिलियन का 10% का 10%, ओके, इज 0.25 ट्रिलियन और 250 बिलियन। 250 बिलियन आ रहा है ना, 25 का 10%, 2.5 का 10% इज व्हाट, 0.25 into 1000 is 250 billion. Yeah, see, you have to, as doing a global program and being exposed to the global fraternity, you have to operate in 3 zeros, 30,000, 30 million, फिर 30 बिलियन, फिर 30 ट्रिलियन, करोड़ लाख में जनरली छोड़ना पड़ेगा। और सिंपल देखो, हिसाब तो इजी होता है ना, 3 जीरो का हिसाब फॉलो करते हैं वो लोग, इट्स वेरी सिंपल, दे जस्ट ऑपरेट वाया 3 zeros। एनीबडी नॉट लाइकिंग दैट ना, कि लैक्स करोड़ मेरे को अच्छा लगता है, कम आउट ऑफ इट, बिकॉज दिस इज हाउ द एंटायर वर्ल्ड रन्स, ठीक है, थाउजेंड्स एंड मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड सो ऑन। तो अकॉर्डिंगली $250 बिलियन का नेट प्रॉफिट इज कमिंग फ्रॉम द ई कॉम, ठीक है ना। नाउ वी हैव टू सर्च फॉर अ प्योर प्ले, ठीक से सुनना, कुछ वर्ड जा रहे हैं, अ प्योर प्ले कंपनी विच इज प्रेजेंट इन द ई कॉमर्स सेगमेंट। आई सेड प्योर प्ले, प्योर प्ले का मतलब हो गया जो केवल ई कॉमर्स में है, जो और किसी में नहीं है, बिकॉज अमेजॉन तो खिचड़ी है ना, इट्स अ कॉन्ग्लोमरेट लाइक रिलायंस। वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्योर प्ले। तो प्योर प्ले ग्लोबल ई कॉम प्लेयर खोजो, कौन है? मेनी नेम्स आर कमिंग, ईबे, वॉलमार्ट, ठीक है। ग्लोबल बोल रहे तो डी मार्ट का तो नाम मत लो अभी, ठीक है, ओके। आई थिंक ईबे इज क्वाइट कंपेरेबल। सो क्या हुआ, ईबे जो है ना, ईबे का हमने चेक किया कि व्हाट इज द शेयर प्राइस ऑफ ईबे। सुनना प्लीज, डोंट चेक इट राइट नाउ। व्हाट इज द शेयर प्राइस ऑफ ईबे and what is the earnings per share of eBay? What is the share price of eBay and what is the earnings per share of eBay? And I divided the two, कि share price divided by earnings per share, ऊपर में share price, okay? So in that case it comes to say 25 times. How many times? 25 times. Because EPS तो एक साल का EPS होता है ना, तुम जो शेयर बाई करते हो तो तुम एक साल का अर्निंग एंजॉय करोगे जिंदगी भर का। If you buy the share of a company, are you going to enjoy the earnings of 1 year or forever? ठीक है ना? Of course you may sell it in between, but if you sell it in between, you will get from the buyer the remaining earnings. So you are going to enjoy perpetually. So obviously price is very high as compared to EPS. Say 25 times. How many times? 25 times. It's very bad for a teacher to teach, but because we don't want to divert, you can consider that लोग 25 साल के अर्निंग्स का पैसा आज देने को तैयार है ईबे के लिए। कितने साल का? 25 साल का। वेरी बैड एक्सप्लेनेशन, दिस इज अ वेरी पुअर एक्सप्लेनेशन व्हाट अ टिपिकल चार्टर्ड अकाउंटेंट विल से हु डजंट डू वैल्यूएशन एट ऑल, ठीक है, जिनको वो लोग ये बोलेंगे, पर मैं एक बार बोल दिया हूँ बिकॉज मेरे को डाइग्रेस नहीं कर रहे। देयर विल बी अदर प्लेसेस जहाँ मैं 2 घंटा पी रेशियो बता दूंगा, ठीक है। 25 टाइम्स इज द पी रेशियो, यानी लोग इसका 25 साल का अर्निंग्स का पैसा देने तैयार है, 25 टाइम्स। तो इन दैट केस Amazon अपने को प्राइमा फेशिया ई कॉमर्स में ईबे से स्ट्रॉन्गर प्लेयर लगता है या वीकर प्लेयर? स्ट्रॉन्गर प्लेयर लगता है। फर्स्ट थॉट तो स्ट्रॉन्गर आ रहा है ना। इफ यू वुड हैव डिप्ड इनटू द इंडस्ट्री यू वुड हैव आर्टिकुलेटेड रीजंस एज टू व्हाई स्ट्रॉन्गर। एक तो होता है फील और एक होता है नो आर्टिकुलेट रीजंस, कि सर उसका जो रीच है वो ज़्यादा है, मतलब नेटवर्क इफेक्ट। व्हाट इफेक्ट? नेटवर्क इफेक्ट, यानी आपको जो सामान है वो अमेजोन पे जल्दी और बेटर वैरायटी मिलेगा एज कंपेयर टू ईबे पे, ठीक है। तो इन दैट केस मोस्ट पीपल विल फ्लॉक टू व्हाट? अमेजोन, ठीक है। उसका एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा हो रहा है, वो मोर पॉपुलर है, ठीक है। तो इन दैट केस उसके अलावा उसका जो
परचेज है, परचेज वो बल्क में होता है सर, वो जो वेंडर्स लोग को दबाता है, ईबे वैसे दबा नहीं सकता है, तो अकॉर्डिंगली इट्स एबल टू एक्सट्रैक्ट बेटर टर्म्स फ्रॉम वेंडर्स, उसका जो आईटी सिस्टम्स है वो बेटर स्ट्रीमलाइंड है, ठीक है, तो एंड इट्स एबल टू बेटर डू इट, मेनी रीजंस व्हाई यू कैन से दैट। तो अगर आपको लगता है फॉर एक्स वाई जेड रीजंस, द रीजन वेरी इंपॉर्टेंट कि सर इन रीजंस के कारण मेरे को लगता है अमेजॉन का फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्गर देन ईबे, तो in that case it should command a higher multiple or lower multiple, higher multiple. Now you have to subjectively feel how much higher. Say at 10% higher multiple to 27.5, say at 20% higher multiple to 30. Are you getting the maths? I said 25, 25 plus 10%, 27.5, 25 plus 20%, 30. ठीक है, तो वो जो माने यू कांट बी इन दैट क्लास 11 12 का लेवल कि नहीं, ये मन से सोचना पड़ेगा क्या 10%, अल्टीमेटली जाके देयर इज सब्जेक्टिविटी, और वहीं पे एनालिस्ट का काम है, सब्जेक्टिविटी से ही दुनिया रन होगा, ऑब्जेक्टिविटी से नहीं होगा। इट इज नॉट गोइंग टू बी अपने डाइस थ्रो करेंगे 1 2 3 4 5 6 आ सकता है सर, सबका चांस 1/6, दिस इज नेवर गोइंग टू बी, नथिंग इज इक्वली लाइकली इन दिस वर्ल्ड, नथिंग, एंड नथिंग कैन कम बाय रोलिंग अ डाइस और टॉसिंग अ कॉइन, एवरीथिंग विल कम बाय जजमेंट, ठीक है, तो इन दैट केस आपका जजमेंट के अनुसार आपको लगा उसका 20% ज़्यादा पी मल्टीपल होना चाहिए, 30 टाइम्स, तो आपने किया 30 इंटू 250, 30 इंटू 250, 30 इंटू 250, तो दैट इज वॉट 7500, 7500 और 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स, ठीक है, वॉट एवर फिगर्स, ये तो वैल्यूएशन अमेजॉन का होना चाहिए ओनली बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स, ओनली बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स। उसके अलावा नाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अमेजॉन बिकॉज ऑफ AWS, नाउ बिकॉज ऑफ द थर्ड वन क्या था वो एडवर्टाइजमेंट, एंड देन बिकॉज ऑफ व्हाट सब्सक्रिप्शन। चारों से अलग अलग वैल्यूएशन निकाले, फिर चारों को ऐड किए, एंड इट बिकम्स अ सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन। व्हाट? सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन, सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन। जैसे कोई स्टूडेंट ही पूछता है, जब हम लोग सेमिनार करते हैं कभी करियर का, तो स्टूडेंट अचानक से पूछेगा सर हम CA और CFA दोनों कर ले, तो उसका बोलने का मतलब मेरे को कितना पैकेज मिलेगा तो इज वांटिंग टू डू सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन, कि CA करते तो पैकेज 12 लाख का, CFA करते तो पैकेज 14 लाख का, तो मिला के 26 लाख। इट डजंट हैपन दैट वे ना, ठीक है, व्हाटएवर। तो सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन इज डन दैट वे, ठीक है। अमेजॉन का बहुत तरह है वैल्यूएशन करने का। तो the chapter that we are going to start with is known as company analysis colon past and present. उसके बाद एक चैप्टर है कंपनी एनालिसिस फोरकास्टिंग द फ्यूचर, फोरकास्टिंग द फ्यूचर, बिकॉज इस चैप्टर में कंपनी एनालिसिस पास्ट एंड प्रेजेंट में दे आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइम सीरीज एनालिसिस ऑफ द कंपनी। विच एनालिसिस? माने मैं तुम्हारे बारे में स्टडी कर रहा हूं, तुम्हारा क्लास 10 में क्या मार्क्स आया था, तुम स्कूल में कैसा परफॉर्म करता था, तुम्हारा 11 में क्या था, 12 में क्या था, तुम स्पोर्ट्स में कैसा है, तुम्हारा फिजिकल हेल्थ कैसा था, ठीक है, तो ये मैं एनालाइज कर रहा हूं तुम्हारे बारे में, दैट इज कंपनी एनालिसिस पास्ट एंड प्रेजेंट। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। क्या? इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, कि ओके तुम CFA प्रोग्राम करने वाले हो क्या, तुम कॉमर्स चुने हो, ओके, तो तुम इस फील्ड में आए हो, इस फील्ड में क्या कंपटीशन चल रहा है, कैसे लोग अभी कर रहे हैं, ये कोर्स कैसा होने वाला है, तुम कैसा करोगे कैसा नहीं करोगे, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ इन दिस कोर्स, व्हाट आर योर वीकनेस इन दिस कोर्स, ठीक है। तो सर मेरा स्टैट्स थोड़ा खराब, आप तो बोले थे स्टैट्स है इसमें, सर मेरा इकोनॉमिक कहीं पढ़ा हुआ नहीं, 11 12 में था नहीं, तो मेरा क्या होगा, सर मेरा अकाउंट्स नहीं था, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। तो यू आर टॉकिंग रिगार्डिंग हाउ डू यू कॉम्पिटिटिवली फिट इन टू दिस इंडस्ट्री, अ क्रॉस सेक्शन एनालिसिस। व्हाट एनालिसिस? क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। एंड देन वी हैव, ये दोनों कर लिया, कंपनी एनालिसिस फोरकास्टिंग द फ्यूचर, फोरकास्टिंग द फ्यूचर, 26 27 28 29 30 और जिंदगी भर का फोरकास्ट अमेजॉन के बारे में। सो इट्स सो डिफिकल्ट, कैसे करें? मल्टीपल सिनेरियोज लाओ, मल्टीपल सिनेरियोज मतलब कम आउट विद मल्टीपल फोरकास्ट, कि सिनेरियो 1 ये हो सकता है, सिनेरियो 2 ये हो सकता है, बियर केस ये है, बुल केस ये है। यू डोंट कम आउट विद अ सिंगल पॉइंट फोरकास्ट ना, यू गिव अस अ रेंज। सर मेरे ख्याल से जो इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है ना वो 18 से लेके 20% होगा, दैट्स फाइन, डोंट से ना 18, गिव अ रेंज कि 18 से 20% होगा या क्या होगा, एंड देन वी विल वर्क अराउंड द रेंज। तो जो वैल्यूएशन आएगा अपना अल्टीमेटली, और फिर एक चैप्टर है वैल्यूएशन,
यानी फोरकास्ट के हेल्प से जो जो कैश फ्लोज जनरेट होने वाला है उस कैश फ्लोज के बदले आज अपने क्या पैसा देने तैयार है. व्हाट इज द अमाउंट यू आर रेडी टू पे फॉर द कैश फ्लोज यू आर गोइंग टू गेट, द प्रेजेंट वैल्यू. इसलिए तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, TVM DCF जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलता रहता हूँ, ठीक है, बिकॉज इतना टन है, कोई लिमिट नहीं है. व्हेन यू डू टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्लासेस, उस पर फ्यूचर वैल्यू भी FV कभी काम ही नहीं आएगा अपने, बिकॉज सिलेबस पे है नहीं TVM. तो PV विल कम टू यूज, PV, FV विल नॉट कम टू यूज एट ऑल. बट एक बार बताने के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, एन्युटी वगैरह उतना डीप पे काम नहीं आएगा, ठीक है. बट पीपल हैव टू हैव अ मास्टर ऑफ द कैलकुलेटर एंड मास्टर ऑफ एवरीथिंग. इट्स लाइक दैट वे. तो ये 4 चैप्टर्स है लाइन से. कंपनी एनालिसिस पास्ट एंड प्रेजेंट, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस यानी क्रॉस सेक्शन कॉम्पिटिशन का, कंपनी एनालिसिस फोरकास्टिंग द फ्यूचर, अब कर दिया फोरकास्ट, प्रेजेंट वैल्यू, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फर्म. ठीक है, दीज आर द 4 चैप्टर्स. ओके, इसमें से जो सेकंड चैप्टर है इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, उससे मैंने लास्ट वाला बैच पढ़ाया था, मैंने वो बहुत जोर से कराया हुआ है. ठीक है, तो मेरा मन क्या होता है, सारा चीज़ एकदम बहुत ही बढ़िया, दे शुड बी देयर, मैंने ऑन द टेबल द बेस्ट ऑफ थिंग शुड बी देयर ऑन द प्लेट. तो वी आर गोइंग टू डू कंपनी एनालिसिस पास्ट एंड प्रेजेंट, देन कंपनी एनालिसिस फोरकास्टिंग द फ्यूचर. इन दोनों टॉपिक को बहुत जोर से करेंगे. एंड ये टॉपिक बिलीव में इतना ज़्यादा काम का है तुम्हारे फ्यूचर के लिए. एग्जाम वाइज तो ठीक है, हो सकता है 2 मल्टीपल चॉइस इससे आएगा, 2 मल्टीपल चॉइस उससे आएगा, 4 मल्टीपल चॉइस, विच कुड बी अ मेक और ब्रेक इन द एग्जाम. बट रियल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा काम का होगा. All discussions will be example oriented, will be involving numericals, will be involving calculation. Would like to ensure that अपने multiple choice करें, testability करें, practical करें, Excel sheet दिखाएं, share करें. कई सारा चीज़ जो मैं क्लास के कंस्ट्रेंट में नहीं कर पा रहा हूँ. सपोज फॉर एग्जाम्पल अभी मैं नोट्स क्या लिखाने वाला हूँ, नोट्स अभी ये लिखाने वाला हूँ कि हमने क्या डिस्कस किया है, क्या, पर डिस्कशन के डेप्थ में नहीं जाऊँगा नोट्स में जानबूझ के. एंड देन व्हाट आई विल डू टू सेव माय टाइम, जो डिस्कशन के अंदर वाला पार्ट था ना जो हमने किए, वो मैं आपको ड्राइव के साथ शेयर करूंगा. यानी कि आपको ड्राइव के साथ क्या मिलेगा, द टॉप डाउन एंड द बॉटम ऑफ एनालिसिस टुगेदर विद सर्टेन क्वेश्चंस यू कैन ट्राई योर ओन एंड. उस पर क्वेश्चंस रहेगा वो 10x20 32% वाला वगैरह वगैरह. तो इफ़ यू गिव द टाइम यू विल फाइंड इट, वहाँ एक्सेल भी हो गया, एक्सेल पे काम करना भी हो गया जिसको काम करना है. तो कहीं ना कहीं एक चीज़ तो है, मैं एकदम आपको लास्ट तक ले जा नहीं पाऊंगा टू योर करियर, दैट यू हैव टू पिक अप एंड यू हैव टू ड्राइव. ठीक है, यदि आप में ये होना चाहिए कि यार एक बार सर अगर बोल रहे ना शेयर किए है ड्राइव पे कुछ, चल वो वाला खोलते हैं, कौन सा शीट शेयर किए, सर ने क्या क्वेश्चन दिया है, सो डैट अपने दोनों तरह से फायदे में हो गए, डिस्कस कर पाए, एट द सेम टाइम टाइम बर्बाद नहीं हुआ कि चलो अब पूरा का पूरा लिखाते हैं. ठीक है, तो कि व्हेन डिड अमेज़न स्टार्ट 1995, हाउ डिड इट स्टार्ट, अ बुक स्टोर ओपनड. ठीक है, इट कैन नॉट बी दैट वे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट राइटिंग सो दैट वी कैन रीकैप. चैप्टर का नाम है, और नाम है ये LM5, लर्निंग मॉड्यूल 5. ये लोग चैप्टर को लर्निंग मॉड्यूल बोलते हैं CFA वाले, LM5. और चैप्टर है कंपनी एनालिसिस. कंपनी एनालिसिस कोलन, एक कोलन दे दो, पास्ट एंड प्रेजेंट. कंपनी एनालिसिस पास्ट एंड प्रेजेंट. ओके, एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जिन लोग को ऐसा लगता है कि यार ज़्यादा बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग ये सब जो है ना वो अपने को है नहीं, कैसे होगा. इतना कॉमन सेंसिकल है ये सारी चीज़ें कि अगर आपका केवल एटीट्यूड ठीक है ना, एटीट्यूड इज़ ओके, यू विल बी एबल टू पिक अप एंड एंजॉय एवरीथिंग. तो व्हाट, बिकॉज मैंने अभी रिसेंटली लिंक्डइन में एक आर्टिकल लिखा था, दैट वाज अबाउट द स्टेट ऑफ कॉमर्स एजुकेशन इन इंडिया, कि पैथेटिक स्टेट है कॉमर्स एजुकेशन का. वरना ऐसा कैसे पॉसिबल है कि साइंस के स्टूडेंट जो 2 साल अकाउंट्स का डेबिट क्रेडिट नहीं करते हैं, ना BO ना इकोनॉमिक्स, और क्लास 12 के बाद वो लोग साइंस से कॉमर्स पर शिफ्ट होते हैं, और 3 महीने बाद यू विल फाइंड दैट लोग अपने से आगे भाग रहे हैं. तो इसका मतलब अपने झक मारे क्या 2 साल कॉमर्स पढ़ के. इट्स अ प्रूफ ऑफ द फैक्ट व्हाट इज बीइंग टॉट टू अस इन कॉमर्स क्लास 11-12. तो आई एम ट्राइंग टू से दैट प्लीज डोंट सिट विद दोज बैगेजेस. If you are in a positive mode, you will understand everything, every business very nicely. But your positive attitude should be there. ठीक है ना? Okay, चलो. Company analysis past and present. इसके अंदर लिखना warm up. Warm up, because आज जो क्लास था warm up क्लास था. ठीक है? Warm up में
Point number 1, revenue drivers of Starbucks. Revenue drivers of Starbucks. दो एरो निकाल देना. लेफ्ट साइड राइट साइड. लेफ्ट साइड में टॉप डाउन, राइट साइड में बॉटम अप. लेफ्ट साइड में टॉप डाउन, राइट साइड में बॉटम अप. टॉप डाउन में रेवेन्यू इक्वल टू मार्केट साइज इनटू मार्केट शेयर. रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्केट साइज इनटू मार्केट शेयर. बॉटम अप में रेवेन्यू इक्वल टू, पहले तो अपने शॉर्ट फॉर्म लिख लें, फिर जिसको लगे फुल फॉर्म लिख सकता है. एन इंटू एफ इंटू टी इंटू डी. नंबर ऑफ स्टोर्स इंटू फुटफॉल इंटू टिकट साइज इंटू नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर. ठीक है, जिसको भी फुल फॉर्म लिखना है कुछ अगर हिंट, नंबर ऑफ स्टोर्स इंटू फुटफॉल इंटू टिकट साइज इंटू नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर. Point number 2, valuation of Amazon. Valuation of Amazon dash sum of parts valuation. Sum of parts valuation. Sum of parts valuation. उसमें कॉलम बनाते हैं अपने. सेगमेंट्स के बाद मार्केट साइज, देन मार्केट शेयर, देन नेट प्रॉफिट मार्जिन. Okay, segments, market size, market share, net profit margin. Segments में we discussed 4 segments: e-commerce, AWS cloud, advertisement, subscription. ठीक है, ये फिगर्स मैं लिख रहा नहीं हूँ. यूजुअली आई डू नॉट लाइक एनी फॉर्मूलाज एट ऑल. ठीक है ना, जो कॉमन सेंस खास करे. तो मार्केट साइज को मार्केट शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ नेवर अ फॉर्मूला इन एनीबडीज डिक्शनरी. और उसके फिर इनटू नेट प्रॉफिट मार्जिन करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट. ठीक है, फिर हर एक सेगमेंट का अलग अलग प्योर प्ले फर्म ढूंढना पड़ेगा, उनका 25 टाइम्स 30 टाइम्स. तो वो क्या लगता है ज़्यादा मल्टीपल होना चाहिए, कम मल्टीपल होना चाहिए, एंड ऑल दैट. ठीक है, तो ये अपने डिस्कस किए. नंबर 3, overall structure of LM 5 to 8. Overall structure of learning module 5 to 8, 5-8. So LM5 company analysis past and present. LM5 कंपनी एनालिसिस पास्ट एंड प्रेजेंट. देवांश AWS का फुल फॉर्म पूछ रहा है, बता दो आप लोग. व्हाट इज AWS का फुल फॉर्म? Amazon वेब सर्विस. ओके, LM5 कंपनी एनालिसिस पास्ट एंड प्रेजेंट. उसके ब्रैकेट में लिखना टाइम सीरीज एनालिसिस ऑफ द कंपनी. टाइम सीरीज एनालिसिस ऑफ द कंपनी कि कंपनी क्या किया पास्ट में, अभी तक क्या किया है.
time series analysis of the company. LM6 industry and competitive analysis. LM6 industry and competitive analysis. Industry and competitive analysis. ओके, कंपनी जिस इंडस्ट्री में, वो इंडस्ट्री कैसा है, ठीक है, ब्रैकेट में क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, ब्रैकेट में क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस. LM7 कंपनी एनालिसिस फोरकास्टिंग द फ्यूचर, यानी 5 और 6 के हेल्प से फ्यूचर का फोरकास्ट करना है. कंपनी एनालिसिस फोरकास्टिंग द फ्यूचर, फोरकास्टिंग द फ्यूचर. LM8 इक्विटी okay, you can hear me I think. LM8 equity valuation, LM8 equity valuation, equity valuation. ओके और इसके पहले जो 4 लर्निंग मॉड्यूल्स है, बिकॉज ये तो 4 5 6 7 सॉरी 5 6 7 8 हुआ ना, 5 लिखाया था ना मैं, LM5. हाँ, तो जो 1 2 3 4 है ना, वो बेसिक्स है कि मार्केट कैसा होता है सर, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, कौन प्लेयर्स होते हैं उसमें, ये निफ्टी सेंसेक्स क्या होता है सर, इंडेक्स कैसे आता है, ठीक है, वगैरह वगैरह. तो वैसा है. अपना फोकस अभी इस पे, LM5 पे और LM7 पे, 5 और 7 पे, ठीक है ना. 6 और 8 मेरा कराया हुआ है, बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है. आई थिंक दैट वुड बी इट फॉर टुडे. आप लोग जो भी अभी ज्वाइन किए हो उन लोग को एडवाइस है, इफ़ यू हैव ज्वाइन राइट नाउ, एथिक्स जो स्टार्ट हुआ है ना, एथिक्स उसको करने का रिक्वायरमेंट नहीं है अभी. यू कैन पोस्टपोन इट. एथिक्स का चिंता मत करना. यू शुड बी वरिड अबाउट बिल्डिंग ब्लॉक्स, ओके, वो जरूर कर लेना चाहिए. टाइम वैल्यू ऑफ मनी और DCF, पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी और DCF थोड़ा बोरिंग होगा, इसलिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हटा लो और टाइम वैल्यू और DCF जो है ना वो धीरे धीरे करना. उसके साथ साथ यू शुड स्टार्ट विथ डेरिवेटिव्स. व्हाट? डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव का जो फर्स्ट क्लास है यूट्यूब पे, वो मेरे काम आएगा. मैं उसके बिना काफ़ी कुछ पढ़ा नहीं पाऊँगा, ठीक है, तो वो काम आने वाले हैं. ओके, दिस इज हाउ यू गो. आई विल बी कम्युनिकेटिंग ऑन व्हाट्सएप टू द कैलकाटा फेस टू फेस स्टूडेंट्स एंड ऑन टेलीग्राम टू द ऑल इंडिया स्टूडेंट्स, ठीक है. तो उस पर मेरा कम्युनिकेशन जाता है. खासकर यहाँ पे रेनी सीजन चल रहा है, कभी वाटर लॉगिंग हुआ तो क्लास विल नॉट टेक प्लेस फेस टू फेस. इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू चेक योर व्हाट्सएप बिफोर लीविंग फॉर होम एंड कमिंग टू द क्लास. ओके, माई नंबर एंड ऑल हैज़ बिन गिवन फॉर यू टू आस्क एनी डाउट. ये मेरा फ़ोन नंबर है. टेलीग्राम पे आप डाउट पूछ सकते हैं. डाउट ऑडियो से पूछ सकते हैं, अपना ऑडियो डाल के. डाउट आप पिक्चर डाल के पूछ सकते हैं, टेक्स्ट पे पूछ सकते हैं, जैसे आपको पूछना है. फ़ोन इज़ नॉट नेवर पिकड अप. फ़ोन कभी पिकअप नहीं होगा, ठीक है. बट अगर आप फ़ोन करेंगे तो स्टाफ तुरंत आपको कॉल करेगा कि बताइए क्या इशू है. ओके, सो सी यू ऑन थर्सडे टू कंटिन्यू दिस मोर प्रॉपरली कि क्या क्या LOS है, कितना पार्ट्स है चैप्टर का, ठीक है, वो सब करेंगे. चलो बाय. यस, एथिक्स का कल क्लास है 10:45 पे, ठीक है. बट जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया उनको नहीं आना चाहिए, दे वोंट अंडरस्टैंड, ठीक है.